Hi everyone, a very warm welcome to this session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Sat Sri Akal, Namaskar, Bonjour, Adab. Let's get started with this session. और आज के सेशन में हम करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बट ऑफ कोर्स वेरी इंटेंस in terms of information and the details and the dates. Nazism and the rise of Hitler, one of the most infamous phases of our history, which ultimately led to another world war. Luckily the last one, hopefully the last one. तो शुरू करते हैं Nazism and the rise of Hitler. The topics that we're going to do is pretty much the entire chapter. One shot है, final revision है. आपने पहले भी मुझे one shot करते हुए देखा है, सुना है. But this is in terms and perspective from the preparation for examination. Now before we begin, as I told you, this is the entire chapter that we're going to repeat. तो सारे ही topics यहाँ पे list कर दिए हैं मैंने in the topics to be covered today. Now before we begin, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन और टूल जो आपकी तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, उसके लिए एक मोमेंट निकाल लेते हैं विच इज़ इम्बाइब लेंस. ना बच्चों, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग स्पेशली, वैसे तो नॉर्मली आप पढ़ते रहते हो, कई बार वी एंड अप जस्ट गूगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गूगल आपको रिलेटेड सर्चेस देता है, वेबसाइट्स पुल इन करता है, जहाँ से यू अल्टीमेटली हैव टू फिगर आउट which one is the most relevant for you and then pick and choose from them. Now this research, this searching process, figuring out which is the relevant one, what we are looking for, takes a lot of time. और एग्जाम के पहले स्पेशली इतना वक्त लाना डिफिकल्ट हो जाता है. टाइम बिकम्स मनी माय फ्रेंड. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाना चाहती हूँ, विच इज़ इम्बाइब लेंस. So what you have to do is just download the app on your phone and it's absolutely free. The whole accessibility and availability of the app. आपने सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है आपके फ़ोन पे. उसके बाद when you open it, ठीक है, इसको जब आप ओपन करते हो तो ये आपसे आपके कैमरा का एक्सेस मांगता है. आप उसे सिर्फ ये इंश्योर कर लेना है आपने that you have given the access to that कैमरा एंड द ऐप. वंस दैट्स डन, ये टेक्स्ट है हमारा. आपने क्या करना है, आपने इसको सिर्फ स्कैन कर लेना है, ठीक है. यू जस्ट हैव टू टेक अ पिक्चर जस्ट लाइक दिस. द मोमेंट आई डू दिस, एज यू कैन सी ओवर हियर, जैसे ही टेक्स्ट का फोटो लिया है, एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग हाईलाइटेड ऑन इट्स ओन. कीवर्ड्स अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास हाईलाइट हो चुका है. अभी फॉर एग्जाम्पल यूथ इन नाजी जर्मनी मेरे पास सजेशन आया एंड दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. मैंने सिर्फ उसको क्लिक कर दिया है एंड इट विल ऑटोमेटिकली पुल इन द वीडियो विच वुड बी रेलिवेंट फॉर मी, अ मटीरियल दैट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर मी टू स्टडी दैट. क्योंकि अब एक पूरे वीडियो में से आप मेरी वीडियो को निकाल के देखोगे वन शॉट की, यूथ एंड नाजिज्म अगर आप जानना चाहते हो तो वो कहाँ पे होगी, ढूंढने में टाइम लगेगा, किस पॉइंट को समझना चाह रहे हो. और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप वीडियो जो है पुल इन होकर के आ जाएगा और यहाँ पे आपकी सजेशन आने लग जाएगी. You can just select the video and get started with your learning, your revision, whatever at whichever phase you're trying to do. And that's how marvelous this app is, and that is how it saves a lot of time for us. So make sure that you have downloaded the app, and now let's get started with the session. Moving forward, let me quickly introduce myself. That's something that I should have done in the beginning, slipped out of my mind. बच्चों, मेरा नाम अंकना है. मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. I have been associated with the education sector for more than 9 years now. I have done my own studies in the field of humanities and hence specialize in social science and English. I've taught both online and offline to the students of ICSE and CBSE, and it has been a wonderful, wonderful journey. Now we'll start with 3 questions for a quick revision. थोड़ा सा रिविजन के साथ शुरुआत करते हैं. It's just to check कि आपको कितना याद है, because at this point of course we are doing a final one shot revision. I expect you guys to be prepared enough with these questions. ये 3 लेवल के सवाल हैं, easy, difficult और medium. तो शुरू करते हैं. पहला सवाल हमारा है, Hitler joined a small group called the Dash in 1919. तो जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और हिटलर हो जाते हैं बहुत ही दुखी और डिसअपॉइंटेड बाय द लॉस ऑफ जर्मनी एंड ऑफ कोर्स द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, देन ही डिसाइड्स टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी द नाजी पार्टी. तो ये कौन सी पार्टी है? ऑप्शन ए जर्मन वर्कर्स पार्टी या ऑप्शन बी जर्मन यूथ नाजीज पार्टी. थिंक अबाउट इट. किस पार्टी की बात कर रहे हैं हम, किस पार्टी को रेफर कर रहे हैं जो आगे चल के बन जाती है नाजी पार्टी? If you want to think a little more,
Hold on to your thoughts, think about it, pause the video. I will show you the answer for now. अगर आपको आंसर के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए तो पॉज करके देख लेना. The correct answer would be the German Workers' Party, which eventually becomes to be the Nazi Party. ठीक है. Next question. What was the Eternal Jew? Eternal Jew क्या थी? एक फिल्म थी, एक मूवी थी, एक किताब थी, बुक, न्यूज़पेपर और none of the above. इनमें से कोई भी नहीं. तो इटर्नल ज्यू जो है, आपको अगर चाहिए तो आपके लिए यहाँ पे हिंट्स भी है जैसे, ठीक है, बट यू हैव टू टेल मी इटर्नल ज्यू मूवी थी, बुक थी, न्यूज़पेपर थी, या इनमें से कुछ भी नहीं था. Again, if you need more time, please feel free to pause the video. I would very strongly recommend कि आप सेशन के बाद जो है कमेंट में बताओ अपने आंसर्स, ताकि हमें भी पता चले आपने कितने सही किए, कितने में आपको हेल्प चाहिए थी. ठीक है, और ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को चेक करते रहने का. जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं पता है उन्हें आप रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज यू वुड नो. देखो, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बहुत सारी चीजें हमको वैसे ही याद रहती है, उनको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं. बट जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, मेक नोट ऑफ दोज टॉपिक्स इन द चैप्टर सो दैट those will be the pointers that you'll have to pay extra attention towards going forward. तो हिटलर जब ये नाजी आइडियाज को स्प्रेड करना चाह रहे थे और पूरी नाजिज्म की प्रोपेगेंडा चल रही थी, तो इन्होंने कई सारे तरह की चीजें की ज्यूज को बदनाम करने के लिए. पिक्चर्स बनाए, मूवीज बनाई, इमेजेस बनाए, पोस्टर्स बनाए, रेडियो, हर जगह, लीफलेट्स पे. दे वर ट्राइंग टू डिफेम देम, हैविंग कैची स्लोगन्स, राइट. और उनमें ही जो है इटर्नल ज्यू वाज वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस मूवीज, यानी कि बहुत पॉपुलर थी बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, बिकॉज द वे द ज्यूज वर पोर्ट्रेड इन इट. ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को यहाँ पे दिखाया जा रहा था और स्टीरियोटाइप किया जा रहा था उन्हें बदनाम करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. But not every German was a Nazi. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. Why did many ordinary Germans remain passive and apathetic witnesses to the brutal crimes that were being committed by the Nazis? क्यों सब लोगों ने आवाज नहीं उठाई? मतलब नाजी वाले हिटलर थे, उनकी आर्मी थी, बट कभी भी बच्चे पॉपुलेशन से ज्यादा बड़ी तो आर्मी नहीं होती है. अगर पूरी पॉपुलेशन आकर के प्रोटेस्ट करती, इवन द वंस हु वर सपोज्ड टू बी द डिजायरेबल्स, probably something could have happened, or something could have happened sooner if not later, right? So because they were afraid of retaliation and repression by the Nazi regime, or they genuinely believed in the ideology and supported their action, they were unaware of the crimes that was happening, or they were actively involved themselves in organizing these or they were actively involved in organizing resistance against the Nazis. What do you think was the reason? ओके, एंड लेट्स मूव टू दी आंसर. अब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो दोनों ही थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं आपको. ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैम वो अफ्रेड थे, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट देयर वर आल्सो पीपल हु डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द नाजीज बिकॉज दे बिलीव्ड इन देम, दे वर कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट्स दैट वर हैपनिंग, दे बिलीव्ड व्हाट वाज बीइंग सेड. बट यहाँ पे जब हम इस पूरी चीज को पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो इस चीज के फेवर में नहीं थे, जिस व्यू पॉइंट से अग्री नहीं करते थे. तो वो क्यों आवाज नहीं उठाते थे? क्योंकि उनको खुद डर लगता था कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो दे विल बी पनिश्ड. एंड दैट्स व्हाई पास्टर निमोलर, ही इवन ही एक्टिवली वाज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड ही हैज इवन रिटन समथिंग अबाउट इट कि जब वो कल उन्हें ले जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, किसी और को ले जा रहे हो तो कुछ नहीं बोल रहे हो, कल जब तुम्हें ले जाएंगे तो बोलने वाला कोई बचेगा ही नहीं. सो स्टार्ट रेजिंग योर वॉइसेस. सो इज ट्राइंग टू प्रोवोक एंड इग्नाइट पीपल्स एंगर एंड अवेकन देम that what they are letting happen is not the right thing. It may backfire and in fact come and harm them eventually in the future. And the same thing that's happening to the Jews can at any point in time happen to them also, because there is no rational explanation behind it, right?
So the year of 1918, Europe had just been devastated by its most destructive war, because it was the Great War, the First World War. A war of a kind that the world had never ever seen before. An Austrian corporal named Adolf Hitler returned home from the battle. जैसे बाकी जर्मन सोल्जर्स आए थे, वैसे ही वो भी आए, थके हारे, दुखी, disappointed, humiliated, betrayed, because Germany had lost the war. Not just that, they were also made to be declared as the war criminals, right? कि उन्होंने शुरू करी है सब कुछ, और उनको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी साइन कराया गया था. So, उन्होंने अपने नेशन के ग्लोरी के लिए जी जान लगा के लड़ा. बच्चे, कोई भी देश की आर्मी जब लड़ रही होती है, अपने देश को प्रेजेंट कर रही होती है, चाहे वो देश सही हो या गलत हो, वो सोल्जर्स अपनी तरफ से पूरी जी जान और सारा दम लगा देते हैं अपने नेशन को जिताने के लिए. What could have happened to cause so much resentment on the German side, and what was in store for Germany's future? So what was going to come? Let's move on and understand that. तो सबसे पहले शुरू करते हैं जर्मनी की कहानी से. क्या हुआ था, कहाँ से शुरू हुई थी बात. So in the early years of 20th century, the First World War was fought between the two different segments. ठीक है, हमारे पास सेंट्रल पावर्स थे और हमारे पास थे अलाइज. ठीक है, इनको सेंट्रल पावर्स क्यों कहते हैं? इनको सेंट्रल पावर्स इसलिए कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया. यूरोप के मैप पे जब आप देखोगे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड द ऑटोमन एम्पायर, ये सेंटर में आते हैं. ठीक है, मतलब ऐसे जर्मनी दिखेगा आपको, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर पूरा ऐसे, इसलिए सेंटर में थे. और वहीं यहाँ पे आपका फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया इस तरीके से स्प्रेड था. तो ये सारे लोग जो हैं ये दोस्त हैं आपस में, लेकिन इकट्ठे हैं नहीं. दे आर नॉट टुगेदर, बट द सेंट्रल पार्ट्स वर टुगेदर. तो इनको अलाइज का नाम दिया गया, और ये जो बीच में थे उनको जो है सेंट्रल पावर का नाम दिया जाता है. ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे आते हैं. अलाइज में कौन है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, लेटर जॉइंड बाय यूएस. और ये जो यूएस की इंटरवेंशन होती है वो उनकी काफी मदद करती है आगे जीतने में, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, दोनों ही जगह इस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, नाउ जर्मनी बेसिकली गेट्स डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दैट इज वेयर यू कैन से द वेरी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑलरेडी केप्ट. वहां से शुरुआत हो चुकी थी फॉर द पेवमेंट ऑफ द पाथ फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जर्मनी हार जाता है इस वॉर में. एक्चुअली शुरू में जर्मनी जीत रहा होता है, बट अल्टीमेटली इट लूजेस आफ्टर यूएस जॉइन्स इन एंड दे आर लॉस्ट. जब ये वॉर चल रही होती है तो जर्मनी मोनार्की रहता है, यानी कि वहां पे राजा रहता है. ठीक है, किंगडम वाला सिस्टम रहता है, और राजा ने ही इस पूरे वॉर को ऑर्गेनाइज किया था, सारे लोगों को, सोल्जर्स को जो है मोबिलाइज किया था, सब मॉनिटर कर रहे थे. बट द मोमेंट द वॉर एंड्स, द मोनार्क ऑल्सो एब्डिकेट्स. राजा भी वहां से जो है खिसक लेता है, अपनी गद्दी छोड़ देता है, राजगद्दी छोड़ देता है. और बहुत टाइम से बच्चे यूरोप में ना स्ट्रगल चल रहा था किस बात की? मोनार्की को रिमूव करने की. फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये चीज हमने समझा हुआ है, दैट पीपल वांटेड अ नेशन स्टेट एंड दे वांटेड अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन व्हिच वाज इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड बाय देम. बट ये फाइट सिर्फ फ्रांस की नहीं थी, ये फाइट पूरे यूरोप की थी, और धीरे धीरे हर जगह ये चल रही थी. तो वैसे ही जर्मनी ने भी काफ़ी टाइम से कोशिश करी थी, बट वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ था. बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, इट क्रिएट्स अ सिचुएशन एज सच जहाँ पे मोनार्की जो है वो खत्म हो जाती है, क्विट कर देती है. तो अब बनेगी सरकार यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से. ठीक है, तो वाइमार जो है एक जगह है आपकी जर्मनी में, और वहाँ पे जब बनेगी ये गवर्नमेंट तो उसे वाइमार रिपब्लिक कहा जाएगा. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द head of state is elected by the people. ठीक है, जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? एक नेशनल असेंबली. तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ. इंटरेस्टिंगली इनफ ये क्लास 10th में आप पढ़ोगे कि इनकी नेशनल असेंबली कहाँ से आई. तो जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ होता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन वैसे तो काफ़ी पहले हुआ होता है 1789 में, उसके बाद धीरे धीरे करके ना बाकी सारे देश भी जो थे यूरोप के वो लड़ने लग जाते हैं अपनी आज़ादी के लिए.
जैसे कि ग्रीस भी ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी चाहती है तो उनको 1832 में मिल जाती है, ठीक है। फिर 1848 में और भी कई सारे देश जो है अपनी आज़ादी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बेल्जियम जो है इसी दौरान, ठीक है, इन द 1800s वो भी अपनी आज़ादी नेदरलैंड से ले लेता है। वैसे ही जर्मनी में भी 1848 में जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जा करके कुछ लोग जो कि इलेक्टेड थे, कहाँ से इलेक्टेड हुए, तो आपस में जो आपके आर्टिजन्स, पेजेंट्स, जैसे थर्ड स्टेट था फ्रेंच सोसाइटी में, उसी तरीके के जो लोग थे, नोबिलिटी वगैरह को जो बिलोंग नहीं करते थे, आपस में इलेक्शन करके 850 मतलब 831 लोगों को इलेक्ट करते हैं। और ये अपने आप को क्या बुलाने लग जाते हैं, ये अपने आप को यहाँ पे नेशनल असेंबली बुलाने लग जाते हैं जर्मनी की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जर्मनी की जो नेशनल आर्मी होती है वो राजा के पास कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का प्रपोजल लेके जाती है 1848 में, जो कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। राजा कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, मैं अपने पावर्स नहीं दे रहा हूँ, वो लुई 16 की गलती, आई एम नॉट गोइंग टू डू, मैं नहीं दोहरा रहा, मेरा यही सिस्टम है, तुमने देख लो तुम्हें क्या करना है। और ये नेशनल असेंबली ना थोड़ी सी स्नॉबिश भी हो जाती है, जिन लोगों ने इनको बनाया होता है, आर्टिशंस होते हैं, पेजेंट्स होते हैं, उनको ही ज्यादा भाव नहीं दे रहे होते, तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट खत्म हो जाता है, तो थोड़े इररिलेवेंट से हो जाते हैं। लेकिन काम तो धीरे धीरे चल ही रहा होता है, इनका रेवोल्यूशन चल ही रहा होता है, थोड़े बहुत एक्टिव रह ही रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे एक्टिव रह ही रहे होते हैं, ये कोशिश कर ही रहे होते हैं। तब क्या होता है, तो आप सोचो कितने साल हो गए, लगभग 70-80 साल बीत जाते हैं, राइट। 1848 की बात है, 1850 मान लो, तो करीब 60 साल 65 साल बीत गए होते हैं। फाइनली 1919 में, मतलब 1918 में वॉर खत्म होता है, और उसका अगला साल जब मोनार्की एंड पे आ जाती है, मोनार्क को समझ आ जाता है कि यहाँ से कट लेना है, तब जा करके इनको मौका मिलता है। तो यही नेशनल असेंबली आती है, और अब ये क्या करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बना के एक फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, जैसे कि इंडिया में है। किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स, प्रोविंस। तो ऐसा वाला सिस्टम होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, ऐसे एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। इस गवर्नमेंट का जो फिर इलेक्शन कराया जाता है, जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, जो नई गवर्नमेंट बनती है उसका नाम होता है वाइमार रिपब्लिक। वहां पे एक प्रेसिडेंट थे, और जो है आपके प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे हम चांसलर भी कहते हैं। तो जब हम वाइस चांसलर कहते हैं, हमारा मतलब होता है वाइस प्राइम मिनिस्टर जैसा रोल, ठीक है, या वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइप का एक रोल होता है। तो चांसलर होता है, वाइस चांसलर होता है, सब लोग होते हैं। अब इसके बाद वाइमार रिपब्लिक फॉर्म हो जाता है। अब ये इलेक्शन से फॉर्म हुआ होता है, पॉपुलैरिटी से फॉर्म हुआ होता है, लोगों ने अपनी मर्जी से इन लोगों को वोट दिया होता है, ठीक है। इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज वर नोन एज द सेंट्रल पावर्स? जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर, और जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। Take few seconds to answer the question. तो सेंट्रल पावर्स बच्चों शुरू में हमने आपको समझाया। सेंट्रल पावर्स उन सारे कंट्रीज के ग्रुप को हम कह रहे हैं जो बीच में यूरोप में लाई किया करते थे एकत्रित होकर के, ठीक है। सो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरिया, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर वुड बी द सेंट्रल वन। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस जो है वो अलाइज थी, ठीक है। तो वाइमार रिपब्लिक बन तो जाता है, ठीक है, ये अपने आपस में स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, वो डिप्यूटीज को इलेक्ट करते हैं, जो जर्मन पार्लियामेंट जो कि राइक्सटैग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जाकर के काम करेंगे। तो फुल डेमोक्रेसी यहाँ पे फॉलो हो रही है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया जाता है, जहाँ पे जो अभी तक कहीं पे नहीं था, ठीक है, मतलब कई जगह नहीं हो रहा था, ठीक है। फ्रांस में भी स्ट्रगल चल रहा था। एवरी मैन एंड वुमन हु वॉज an adult above the age which was considered of that an adult was allowed to vote over here and choose their government. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वाइमार रिपब्लिक के साथ? They definitely had certain issues. तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जो हमारे इंडिया में भी होता है
कि आपकी सीट्स जो है वो पार्टीज में डिवाइडेड होती हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है। और कोलिशन गवर्नमेंट में एक इशू जो हमने बहुत कॉमनली देखा है वो है अनस्टेबिलिटी, क्योंकि पार्टीज आपस में अग्री नहीं करेंगी, कोई ज्यादा पावर चाहेगा, कोई कम पावर चाहेगा, कोई एक दूसरे तरीके का पावर चाहेगा, और उस चक्कर में लड़ाई होती है। कभी सपोर्ट दिया जाता है, कभी सपोर्ट लिया जाता है, सरकार बहुत अनस्टेबल होती है, कभी बनती है, कभी गिरती है, मल्टीपल टाइम्स गिरती है। तो यहाँ पे जो भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलता था वो जा करके जो है अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती थी। लेकिन वो मेजॉरिटी का वोट मिल पाना ही जो है वो सबसे डिफिकल्ट काम था। एक पार्टी अकेले मेजॉरिटी सिक्योर कर पाए, उसकी वजह से ही वो अचीव कर पाना ही बहुत डिफिकल्ट था। और इसकी वजह से कोलिशंस होते थे, यानी कि कई सारे पार्टीज जो है वो साथ में मिलकर मेजॉरिटी बनाते थे। यानी कि मान लो अगर ये एक पाई है, इसमें मुझे जीतने के लिए इतने सारे वोट्स चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, एक ही पार्टी इसको नहीं कर पाई। तो मान लो दो पार्टी को ये वाला पाई मिला, पीस ऑफ पाई मिला था, दो पार्टी को ये पीस ऑफ पाई मिला, या एक पार्टी को ये 3 पीस ऑफ पाई मिला। तो इन दोनों ने क्या बोला कि भैया चलो हम हाथ मिला लेते ताकि हमारा बड़ा पीस ऑफ पाई हमारे पास आ जाए, मेजॉरिटी प्रूफ कर दे। लेकिन अब इन दोनों में जब लड़ाई होगी, क्योंकि आइडियोलॉजी, पावर, इन सब चीजों में भसड़ हो जाती है, भसड़ हो जाती थी। अब जब प्रॉब्लम होगी तो अब ये पार्टी बोलेगा मुझे नहीं करना तो मैं सपोर्ट, मैं अपने 2 पीसेस ऑफ पाई लेके जा रहा हूं। तो अब ये पार्टी यहां फंस गई, अब गवर्नमेंट गिर गई। अब लोग कितने परेशान होंगे, क्योंकि तुमको भैया चाहिए ना कि स्थिरता से गवर्नमेंट चले। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या खत्म हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है, और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जर्मनी के कंधे पे, और उनकी गोद में बिल्कुल आकर बैठ गई थी प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसा समझो कि कांटों पे ही चल रही थी जर्मनी की जिंदगी, बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर का इफेक्ट, ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कम से कम सरकार तो स्थिर हो, वो भी नहीं हो रही है। दूसरा, आर्टिकल 48 जब इनको मना आता था तब इम्पोज कर देते थे। आर्टिकल 48 क्या है? एक इमरजेंसी एक्ट था कि जब भी नॉर्मली क्या होता है, ये आप तब देते हो जब सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं देश की, कि सिक्योरिटी इश्यूज है हर एक लोगों के, हर एक नागरिक के जो सिविल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, सबसे सुप्रीम लॉ है, सबके लिए सेम लॉ है। ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, सीज कर दी जाती हैं, सो दैट आप सिक्योरिटी का ख्याल रख सको। लेकिन ये क्या करते थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए ये काम यूज कर दिया करते थे। जब इनको लगता था कि जनता हमारे लिए आवाज उठा रही है, हमारे अगेंस्ट, जब भी अपने आप को एक पिकल में, जब इनको मुश्किलात लगने लगती थी, अपनी स्थिति मुश्किल लगने लग जाती थी, ऐसा लगता था कि नहीं मैनेज कर पाएंगे, नहीं फिगर आउट कर पाएंगे, गेट थ्रू नहीं कर पाएंगे, ये आर्टिकल 48 इम्पोज कर देते कि बेटा जाओ, तुम्हारे राइट से खत्म कर दिया हमने, अब तुम क्या क्रिटिसाइज करोगे, अब तुम क्या एक्सप्रेस करोगे, ये सब ड्रामा बंद कर दो। तो लोग गुस्सा, क्योंकि भैया तुम पहले सरकार संभाल नहीं पा रहे हो, अब जब वॉर के इफेक्ट्स आए हैं और इतनी प्रॉब्लम है और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तुम वो कर नहीं पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे? वो कर नहीं पा रहे हो, उल्टा हमारे राइट्स अलग ले रहे हो, हम पे आर्टिकल और इमरजेंसी अलग इम्पोज कर दे रहे हो, ठीक है। एंड देन फाइनली एक बहुत बड़ी चीज, ये तो बाद में आगे चल के वो करते रहते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द वॉर हैड एंडेड, व्हेन द गवर्नमेंट वाज प्रिटी न्यू, गवर्नमेंट रिलेटिवली काफी नहीं थी, तब क्या होता है बच्चे, जब वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को देखा जाता है, कोर्ट में जज किया जाता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत जर्मनी ने करी है वर्ल्ड वॉर 1 में, कि भैया तुमने वॉर शुरू किया, तुमने हमारे इतने लॉसेस लगाए, तुम हमको इससे बाहर निकालो, तुम हमारे लॉसेस की पेमेंट करो। ऐसा नहीं है कि एलाइज ने लॉसेस नहीं कराए, भाई वॉर तो दोनों तरफ से होता है, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, लड़ाई एक तरफ से तो होती नहीं है, दोनों तरफ से हो रही थी। लेकिन इन्होंने सारा ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया और बोला कि यू फिगर इट आउट, यू पे अस। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगे थे, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से हुआ था, है ना, टीओवी जिसे हम कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से। तो रिपब्लिक अब क्या है, जब ट्रीटी साइन हुई तब कौन था, तब जो है वाइमार रिपब्लिक था, ठीक है। वाइमार रिपब्लिक ही जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि राजा तो भाग चुका था। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को साइन करने के लिए ये आपके वाइमार रिपब्लिक चले जाते हैं और लोगों के लिए विलन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बच्चे बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी फॉर जर्मनी एज अ कंट्री, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस और इम्पोजिशंस लगा दिए गए थे, जैसे ब्रिटेन को भी लगता था दैट पीपल वर बीइंग वेरी हार्श ऑन देम, सो दे वांटेड टू गो लिटिल इजी ऑन देम, राइट। बट कंडीशन तो लग गई। अब लोगों को लगा कि वाइमार रिपब्लिक है जिसने ज्वाइन किया है,
जिसने एक्सेप्ट किया है, उनकी वजह से ऐसा हुआ है, और उन्होंने हमें इस राह पे आके खड़ा कर दिया है कि बाकी देश जो है हमारी बैंड बजा रहे हैं। तो वो ना उनको ब्लेम करने लग गए इस बात के लिए, और इस वजह से उनको नवंबर क्रिमिनल्स भी बुलाने लग गए। दिस इज व्हेन द ठीक है, this is when your this thing was decided. I mean, this is where the Treaty of Versailles was done in the month of November. तो जब उस समय किया गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इनको नवंबर क्रिमिनल्स बुलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो वाइमार रिपब्लिक के साथ चल रही है, यानी कि हमें समझ आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी जर्मनी की अपनी इंटरनल स्ट्रगल खत्म नहीं हुई है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में आखिर ऐसा क्या क्या था कि लोग इतने नाराज हो गए सरकार पे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहां से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नाजिज्म कराने वाली हूं, वहां पे आप देखोगे कि यहां से आपको बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो 1919 में होती है, यहां से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन जर्मनी। तो वहां पे आप इसके बारे में, और इसके पहले स्लाइड में जो हमने वाइमार रिपब्लिक के बारे में बोला है, वो दोनों बातों से आप एक 5 मार्कर आंसर बना सकते हो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के 3 कंडीशन, 5 कंडीशन, या पूरी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज समझाओ। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से लोग क्यों दुखी थे, क्यों वाइमार रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स बोला जा रहा था, उन सब में आपके ये आंसर्स है, ये पॉइंटर्स है। तो बच्चे, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की गई, वहां पे सारे अलाइज आते हैं और जर्मनी के ऊपर चढ़ जाते हैं कि तुमने सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, और अब उनको पनिश करना चाहते थे वो। तो इस बात पे एक ट्रीटी साइन करते हैं टू इंश्योर टू कीप अ चेक ऑन जर्मनी। पर्पस क्या था कि ऐसे कंडीशंस लगा दो जर्मनी पे कि वो आगे सोच भी ना सके किसी दूसरे वॉर के बारे में, वो संभल के रहे, अपने लिमिटेशंस में रहे और कोई ऐसी गलती ना करे। तो अब इसके लिए उन्होंने बहुत हार्श कंडीशंस लगाए। लिटिल डिड दे नो that these conditions that they're imposing as a punishment for the war that happened, and in order to ensure that no war should happen in future, वो उल्टा ही पड़ेगा। अब क्या करेगा, जो आपका जर्मनी है वो और भी ज़्यादा रिटेलिएट करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तो इसी वजह से होता है। तो 13% जो लैंड है यूरोप, मतलब बेसिकली क्या होता है, जर्मनी के ओवरसीज कॉलोनीज छीन लिए जाते हैं। हमें पता है कोलोनाइजेशन चल रहा था, ब्रिटेन ने इंडिया, अफ्रीका, कई सारी जगह कर रखा था, जर्मनी ने कर रखा था, जैसे अफ्रीका वगैरह में जर्मनी का अपना शहर था। ठीक है, या फिर और भी जगह थे, फ्रांस ने कर रखा था। तो वैसे ही जर्मनी के जितने भी शहर्स थे ना, उसके 13% अपनी लैंड यूरोप में वो कॉलोनीज खो देता है। अब कॉलोनी खोता है तो अपनी 10% पॉपुलेशन खो देता है। कुछ एरियाज जो उसने फ्रांस वगैरह के अपने वॉर में अपने अंडर किए थे, वो एरियाज उनसे लेकर के फ्रांस को दे दिए जाते हैं। ठीक है, फ्रांस के एरियाज नहीं, और भी जो एरियाज अपने अक्वायर कर लिया था उन्होंने, एनेक्स कर लिया था वर्ल्ड वॉर में, वो फ्रांस को दे दिए जाते हैं, मतलब उससे उनका हक हटा दिया जाता है। 75% जहाँ पे उनका आयरन का प्रोडक्शन होता है वो उनसे छीन लिया जाता है, ये बोल करके कि हम अपने पैसे कहाँ से वापस निकालेंगे, यहाँ से वापस निकालेंगे, और तुम प्रोडक्शन करके क्या करोगे, तुम हमारे पैसों को रिकवर करने में ध्यान दो। ठीक है, उनकी 26% कोल की जो प्रोडक्शन थी उसको हटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, डिसआर्मामेंट कर दिया जाता है, यानी कि बैन कर दिया जाता है, उनके आर्मी को स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाता है कि आप जो है आर्मी रखोगे ही नहीं, आर्मी रखोगे तो आगे लड़ाई करोगे, आपको आर्मी रखने का हक नहीं है, विच इज़ वेरी इंसल्टिंग, राइट। व्हाट अबाउट देयर प्रोटेक्शन, अगर कोई उन पे अटैक कर दिया, एक बेसिक हक होता है किसी भी किंगडम का, किसी भी नेशन का, कि अगर वो अपनी आर्मी बिल्ड करना चाहे तो कर सके, बट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने ये कंडीशन लगा दी थी और ये राइट जर्मनी से छीन लिया था। अलाइड पावर्स ने डीमिलिटराइज कर दिया उन्हें, साथ ही साथ वॉर रेपरेशन भी जिसे हम कहते हैं, वॉर रेपरेशन माने द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दैट जर्मनी वाज सपोज्ड टू पे टू द कंट्रीज दैट इट हैड फॉट विद। तो भाई तुमने मुझसे लड़ाई की, मैंने भी तुमसे लड़ाई की, तुमने मुझे चोट लगाया, मेरी गाड़ी तोड़ी, मेरी घड़ी तोड़ी, मेरे प्रॉपर्टी को हार्म किया, मेरा लॉस हुआ, तो मैंने भी तुम्हारा किया। ठीक है, भले झगड़ा तुमने शुरू किया हो, लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि मैं जीत गई हूँ तो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुमने सब कुछ किया, अब तुम मेरे सारे खर्चे को पे बैक करो।
तो तुम्हारा भी तो खर्चा हुआ है, तुम्हारी भी तो चीज़ें खराब हुई है, तुम्हारी भी चीज़ें टूटी है, लेकिन तुम मजबूरी में आ जाओगे क्योंकि तुम पे ये इम्पोज कर दिया गया। मैंने पुलिस को भी ले आया, पुलिस के सामने भी ये बात प्रूव कर दी। तो अब क्या करना होगा तुम्हें? मुझे अपने खर्चों को तो पहले मैनेज करना ही है। हो सकता है तुम्हारे खर्चे इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा हुए हो, ज़्यादा लॉसेज हुए हो, बट फिर भी तुम्हें वो पैसे मुझे देने हैं जो मेरे डैमेजेस तुमने किए। तो जो वॉर डैमेजेस थे बाकी देशों के, वो उसके लिए 6 बिलियन बोल दिया उनको देने के लिए। 6 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और उस वक्त तो और ज्यादा हुआ करता था। इनफैक्ट जो उनका रिसोर्स लैंड था, राइन लैंड, उसको भी उनसे छीन लिया। बच्चे एक सिंपल सी बात बताओ, कोई देश जो ऑलरेडी खुद वॉर से निकला है, वो वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस में होगा, उनके कितने सारे यंग जनरेशन मारे गए होंगे, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, ठीक है, वॉर लूज किया है तो वैसे ही मोटिवेशन इतना लो होगा उनके ऊपर। वैसे तो तुम ट्रीटी साइन करा के कंडीशंस लगा रहे हो, ठीक है, बट तुम उनको कह रहे हो कि तुम्हें पैसे भी दे, तो भैया वो पैसे कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे इमीडिएटली आफ्टर द वॉर? दे वुड नीड आयरन का प्रोडक्शन, कोल का प्रोडक्शन, रिसोर्सफुल लैंड जहाँ से वो अपना प्रोडक्शन चालू रख सके और आगे चलकर लोगों को नौकरी दे, वेल्थ जनरेट करे, तभी तो इस पैसों को वापस करेंगे। बट उन्होंने उनसे पैसे तो लिए ही, वेल्थ जनरेट करने के ऑप्शंस को भी बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया। इसीलिए इस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग और बहुत ज़्यादा हार्श माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर हम ज़्यादा हार्श नहीं होंगे। हमें समझ आता है कि आपके प्रैक्टिकल्स की आप कई बार तैयारी करना चाहते होगे अच्छे तरीके से, तो आप जो है स्कूल में एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हो, बट उसके बाद दोबारा नहीं कर पाते। और कई सारे प्रैक्टिकल्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस हम डायरेक्टली खुद से परफॉर्म नहीं कर पाते, हम सिर्फ खड़े होकर देखते हैं हमारे टीचर को करते हुए, बट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट ऑन योर ओन, बिकॉज दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल मीन्स, राइट? डूइंग इट बाय योरसेल्फ. You don't have to worry, maybe not in real, but virtually you can have all of those lab experiences by this free app that comes with Imbibe. आपको सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करके you just have to start doing your experimentations as much as you want. Imbibe ऐप पे हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं, प्लस यू हैव मोर देन 70,000 वीडियोस टू लर्न फ्रॉम। आप इस चैप्टर से भी जितना कुछ लर्न करना चाहते हो, कुछ एडिशनल वीडियोस देखना चाहते हो लाइव क्लासेस के अलावा, वो भी देख सकते हो। 2000 किताबें भी प्रेजेंट है आपके लिए, और इम्बाइब लेंस का तो मैजिक हमने देख ही लिया है, हमें पता ही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ना। नवंबर क्रिमिनल्स का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि कई सारे लोग वाइमार रिपब्लिक को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने आराम से हाथ जो है निहत्ते चले गए और झुक गए उनके सामने, और इसकी वजह से जो है साइन करना पड़ा, हमारा ये डिस्ग्रेस आया ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का, हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है। इनको ब्लेम करो, वाइमार रिपब्लिक को ब्लेम करो, और उनको नवंबर क्रिमिनल्स इस वजह से बुलाने लग जाते हैं, ठीक है। तो चलो इसी बात पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू साइन डैश आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1918। क्या साइन करने पे उनको मजबूर कर दिया गया था? तो हमने अभी इतनी देर से बात की, नवंबर क्रिमिनल्स बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट वाज बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है वो साइन करने पे मजबूर कर दिया गया था, ठीक है। अब जर्मनी के ऊपर और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वॉर का, तो जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ, तब आप वहां पे देखोगे कि क्वेश्चन ये भी है फॉर 5 मार्क्स फॉर दैट मैटर, दैट व्हाट were the effects of the war on Europe। बच्चे, आपको अगर जर्मनी के लिए ये बात पूछी जाए तो वहां पे आप बताओगे कि हाइपर इन्फ्लेशन होता है, वाइमार रिपब्लिक आ जाती है जो कि रास्ता जो है वो डिक्टेटरशिप के लिए बना देती है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हो जाता है, उनकी सारी चीज़ें छिन जाती हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम तब बताएंगे जब हम जर्मनी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूरे यूरोप में बोल रहे हैं, क्योंकि वॉर में तो पूरा यूरोप जूझा हुआ था, तब हम क्या बताएंगे कि बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट था यूरोप पे, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फाइनेंशियल हो। पूरी दुनिया में ही क्राइसिस चल रहा था, यूरोप में स्पेशली, बिकॉज इनकी ही कंट्रीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। जो देश पहले क्रेडिटर हुआ करते थे, यानी कि इतना पैसा था उनके पास, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन,
फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, इतने बड़े वॉर के बाद इतने पैसे खोए इन्होंने कि अब ये खुद कर्ज में आ गए थे। कहाँ ये पहले लोगों को पैसा दिया करते थे, इतने पैसे बनाया करते थे, इतने रिच हुआ करते थे, अब इनके पास खुद के लिए कुछ बचा नहीं था। जो भी सपोर्टर्स थे वाइमार रिपब्लिक के, उन्हें भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है वो साइन कर दिया था, ठीक है। और इसकी वजह से बड़ा आसान टारगेट बन गए थे वो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल के लिए। क्यों कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल के लिए बड़े आसानी से बन गए थे? डेमोक्रेसी के वो बच्चे पहले रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन जर्मनी, और इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल और नया कॉन्सेप्ट था फॉर पीपल ऑफ जर्मनी। आपको याद है ना, अभी हमने देखा कि इसके पहले मोनार्क हुआ करते थे। तो आपको प्रूफ करना होगा ना कि भैया जब तुम्हारे जीवन में संकट है तो एज अ गवर्नमेंट आई विल हेल्प यू, ना कि मैं गवर्नमेंट ही नहीं संभाल पा रही हूँ, ना कि मैं जो है वॉर रेपरेशंस वगैरह जाके पे करने के चक्कर में अपनी बर्बादी घर ले आ रही हूँ, या आर्टिकल 48 इम्पोज कर दे रही हूँ जब मेरे सिटीजन्स में से अपना हक मांग रहे हैं। तो उनकी जो बिलीफ है वो कहाँ से आएगी? तो लोग जो है अब इस चीज़ के लिए पिट करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं क्रेव करने लग जाते हैं कि शायद ये रास्ता तब बेटर हो जाएगा, शायद ये रास्ता पेव कर देना चाहिए एक डिक्टेटरशिप के लिए। डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी को सोच रहे थे खत्म ही करो और एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आओ जहां डिक्टेटरशिप हो, ये बेटर होगा, ठीक है। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, ये बहुत बड़ा चेंज आता है क्योंकि वॉर हीरोज बन जाते हैं वो, बट जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा अफ्रेड थे, थक चुके थे ऑफ द ट्रेंच लाइफ, ठीक है। उन्होंने वो जिंदगी जी थी, वो इस चीज को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा यूरोप जो उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। अग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा चल रहा था, नेशनल ऑनर दिया जा रहा था, मतलब ऐसा कहा जा रहा था लड़ोगे तो लोग तुम्हें जानेंगे, वैसे अच्छा होगा। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, दैट वाज नॉट द बेस्ट लाइफ टू हैव, ठीक है। नाउ द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अब क्या होता है कि स्पार्टसिस्ट लीग जो है वो स्टैब्लिश होती है ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, मतलब सोशलिज्म की बात करने वाली एक पार्टी आ जाती है, वो भी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाती है, ठीक है। वो एक अपराइजिंग करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है तुम्हारा डेमोक्रेसी काम नहीं कर रहा है, हम सोशलिज्म लेके आते हैं। लेकिन वाइमार रिपब्लिक बड़े आराम से उनको दबा देती है एक वॉर वेटरन ग्रुप की मदद लेकर जिनका नाम फ्री कॉप्स होता है। तो वो क्या करते हैं, जो वॉर में ऑलरेडी सोल्जर लड़ चुके होते हैं, अब तो वॉर नहीं चल रहा होता तो वो फ्री रहते हैं, तो उनका अपना एक ग्रुप बन जाता है क्योंकि वो वॉर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं, तो उनकी मदद से वो उसको दबा देते हैं इस अपराइजिंग को। लेकिन दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द अपराइजिंग जहाँ पे सोशलिज्म की डिमांड थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपराइजिंग्स हो रही थी, जैसे हिटलर की भी अपराइजिंग होगी, हिटलर भी वाइमार रिपब्लिक से पावर छीनने की कोशिश करेगा, बट उनकी भी जो ट्राई है ना वो फेल हो जाएगी और उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। पहले तो एक बार ये भी होगा। फिर 1923 में मतलब अब क्या है, उनको पैसे देते रहने हैं फ्रांस को, उनसे जगह ले ली जाती है, अब वो थोड़े टाइम के बाद पैसे नहीं दे पाते, तो एक और उनकी जगह थी रूर, ठीक है। रूर नाम की एक जगह थी, ये देखो रूर, जो कि उनका लीडिंग एरिया था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का, प्रोडक्शन का। फ्रांस कहता है कि तुम मेरे पैसे ढंग से नहीं दे पा रहे हो, तुम अच्छे से पे नहीं कर पा रहे हो, तो जर्मनी ने कहा हम नहीं करेंगे पे, जाओ। इतना सारा पैसा कहाँ से लाए हम, हमारे लोगों को नौकरी कौन देगा, हमारे यहाँ इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। तो फ्रांस कहता है ठीक है नहीं दोगे तो हम रूर ले लेते हैं, तो रूर ले लेते हैं। तो जर्मनी गुस्सा हो जाता है, जर्मनी कहता है तुमने हमारे हाथ पैर वैसे ही तोड़ रखे, हमें वैसे ही लूला लंगड़ा बना दिया है, हमारी वैसी हालत इतनी खराब कर दी है, एक अंधे का मात्र सहारा था वो भी ले जा रहे हो, मतलब हमारे देश को तो लूट के खत्म ही कर दिया है भैया। वॉर क्या लड़ लिया, लग रहा है जीवन भर का पंगा ले लिया है, और लड़ने तो तुम भी आए थे। तो हो जाता है जर्मनी बहुत ज्यादा गुस्सा, वो कहता है तुम्हारे पैसों की प्रॉब्लम है, मैं तुमको पैसे तो नहीं दे रहा, मैं अपने देश में बहुत सारे पैसे प्रोड्यूस कर लूंगा, ठीक है। अब इसकी वजह से जर्मनी गुस्से में क्या करने लग जाता है, बहुत सारा पेपर करेंसी जो है उसको भर भर के रेकलेसली प्रिंट करने लग जाता है। बच्चे देखो, किसी भी देश में गरीबी क्यों आती है, पैसा तो उस देश के लोग ही प्रिंट कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा प्रिंट करें और सब में बांट दे, पर ऐसा नहीं होता है। उस पैसे की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, उस पैसे की वैल्यू और वर्थ बेसिकली ऐसे डिटरमाइन होती है कि देखा जाता है कि किसी भी देश के पास गोल्ड रिजर्व्स या फिर ऐसा कह लो कि बैंक बैलेंस कितनी है, ठीक है। आजकल गोल्ड रिजर्व्स में बैंक बैलेंस देखा जाता है कि भैया तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितनी है। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे कि US डॉलर है ना। हमारा क्या है कि $1 की अगर बात करो
तो हमारे लगभग 85 रुपीज के बराबर होता है। मतलब समझ रहे हो, उनका एक हमारे 85 के बराबर है। तो कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है इनकी। क्यों? क्योंकि इनके बैंक में बहुत पैसे हैं, ये बड़ा देश है, अमीर देश है, तो उनका एक हमारे 85 पे भी भारी पड़ता है। और ये डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है, कभी 50s में हुआ करता था, फिर 60s में हुआ करता था, बट अब 85 में आ गया। तो उनका अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता गया, उनकी वैल्यू वैसे से बढ़ती गई। उनके कंपैरिजन में हम जहाँ खड़े होते हैं वैसे डिटरमाइन होता है। अब इसी के बेसिस पे हम हमारे इनकम वगैरह को कंसिडरेशन में रख करके हमारे देश में करेंसी प्रिंट करते हैं। हम चाहे तो कितने भी नोट्स प्रिंट करके गरीबों में बांट दे और बोले कि अब सबके पास पैसा है, बल्ले बल्ले, पर ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ही जर्मनी भी जब अंधाधुंध पैसों को प्रिंट करने लग जाता है, उसकी वैल्यू घटने लग जाती है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। यानी कि समझो, अगर अगर मेरे पास 10 बार्स ऑफ गोल्ड है, ठीक है, आई हैव 10 बार्स ऑफ गोल्ड इन माई रिजर्व, विच मीन्स आई हैव अ सर्टेन वैल्यू, देन लेट्स जस्ट से कि मैं जो है $1 मिलियन प्रोड्यूस कर सकती हूँ इन माई ओन करेंसी। या फिर ऐसा समझ लो कि मैं 100 करोड़ रुपया प्रिंट कर सकती हूँ अपने देश के खर्च के लिए, क्योंकि मेरी वर्थ, मेरी इनकम सब कुछ इतनी है। तो तब पैसा उस मेरे कैलकुलेशन, ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट सिंपल तरीके से बता दी हूँ कि मेरी वर्थ इतनी है, ये सब ले दे करके, तो मैं 100 करोड़ रुपया उसके हिसाब से प्रिंट कर सकती हूँ। अब ये 100 करोड़ रुपया मैं जैसे भी प्रिंट करूँ मेरे ऊपर है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं गुस्सा हो जाऊँ और अब मैंने 100 करोड़ के जगह 2000 करोड़ प्रिंट कर दिए, लेकिन बेटा मेरी वैल्यू तो इतनी है ना, तो कोई तो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए घटेगा। तो कौन घटेगा? ये 2000 करोड़ घट जाएंगे। मैंने मेरे हिसाब से प्रिंट भले 2000 करोड़ करे होंगे, लेकिन इसकी वैल्यू घट करके वापस 100 करोड़ की हो जाएगी। यानी कि एक जो नोट आपका 2000 का होगा, उसकी वैल्यू अब 100 रुपए के बराबर हो जाएगी। जो सामान खरीदने के लिए आप पहले 100 रुपए दिया करते थे, 100 रुपए की मिठाई लिया करते थे, वो मिठाई सेम लेने के लिए अब आपको 2000 रुपए देने होंगे, क्योंकि आपके नोट की वैल्यू कम हो गई है। इस सिचुएशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और यही हो जाता है जर्मनी में, क्योंकि अंधाधुन उन्होंने पैसे प्रिंट कर दिए, लेकिन प्रिंटेड करेंसी की वैल्यू जो है वो ड्रॉप कर गई, वो खत्म हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है तो बहुत बहुत महंगाई बढ़ जाती है, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना। लोग परेशान हो जाते हैं, सामान नहीं खरीद पा रहे, गरीबी छा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जर्मनी जो है उसकी हालत वर्ल्ड वॉर के बाद क्या खराब हुई होगी, जो अब हो जाती है। अब जर्मनी की ऐसी हालत देख करके यूएस को जो है उन पे दया आ जाता है, और ब्रिटेन पहले से ही उनकी तरफ थोड़ी दया भावना लेकर के बैठा हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन की गई है ना, ये कुछ ज्यादा ही हार्श कर दी गई है उनके ऊपर, ठीक है, और ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आसान होना चाहिए था, थोड़ा सा ईज्ड आउट होना चाहिए था हमें उनकी तरफ, पर हम नहीं हुए। अब उनकी जिंदगी तो काफी डिफिकल्ट हो गई, अब वो बेचारे क्या करेंगे ऐसी हालत में। तो यूएस यहाँ पे आता है उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। यूएस यहाँ पे क्या करता है, एक डॉज प्लान बनाता है टू हेल्प जर्मनी, है ना। इसमें वो क्या करते हैं, इसमें एक ट्रायंगुलर प्लान जैसा बनता है, समझो, जहां पे एक तरफ यूएस है, और डॉज ही नाम था उनका जिन्होंने ये प्लान बनाया था, इसलिए डॉज प्लान है। एक तरफ जर्मनी है और एक तरफ फ्रांस है। तो एक तरीके से यूएस ने बेसिकली ना लोन दे दिया जर्मनी को, जहां पे उन्होंने कहा तुम धीरे धीरे लंबे समय में मेरा लोन मुझे आहिस्ता आहिस्ता वापस करते रहे ना। ये पैसा मैंने तुम्हें दिया है, बट मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू एक्चुअली डू इज दैट यू विल कीप गिविंग द मनी टू मी स्लोली स्लोली इवेंचुअली, सो दैट यू गेट आउट ऑफ दिस लोन। मीनवाइल ये जो पैसा तुम्हें यहाँ देना था फ्रांस को, ये कैंसिल आउट हो जाता है, और मैं तुम्हारे बदले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी मैं यूएस से फ्रांस तक पैसे पहुंचा देता हूं। ये हिसाब लगा दिया उन्होंने। अब इनकी जिंदगी थोड़ी बेटर होना शुरू हुई, धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू ही हुआ था, जर्मनी अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू ही हुआ था इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद। और ये 1928 के अराउंड की बात है, मतलब ये डॉज प्लान हो जाता है 98, 28, 29 ये सब चलता है। तब तक ये जो माए बाप था इनका, जो नया गॉड फादर बन के आया था इनके लिए, उसकी अपनी बत्ती गुल हो जाती है, अपना भट्टा बैठ जाता है, क्योंकि आ जाता है द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि आपका हिट करता है 1929 में।
तो होता यह है कि जिनका जो पूरा मार्केट होता है वो पूरा क्रैश कर जाता है, जैसे कोविड के समय रिसेशन आ जाता है। मार्केट कैसे क्रैश करेगा? बच्चे, आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों को पैसे इन्वेस्ट करते हुए स्टॉक्स में, कंपनी के शेयर्स में, और उन पैसों से ही जो है कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी की वैल्यू लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी एबीसी है, इस कंपनी ने बोला कि मेरे कंपनी की वैल्यू जो है वो 50 करोड़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास 50 करोड़ रुपए हैं। ये प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई इतने लोगों ने हमारे इतने दाम पे शेयर्स खरीदे हैं, इतना इन्वेस्ट किया है, तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू जो है वो इतनी होनी चाहिए। उनके पास एक्चुअल कैश नहीं होता है, उसके बेसिस पे वो अपने वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर वही लोग यहाँ से पैसे निकालने लग जाए तो इस कंपनी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट में एक अनरेस्ट आ जाता है वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत सारे लोगों ने जो है इन्वेस्ट करे होते हैं पैसे, घर खरीदा होता है, ऐसे कई सारी चीजें की होती है, बट अचानक उन्हें पता चलता है कि भैया ओवरऑल वर्ल्ड में जो है रिसेशन ही चल रहा है, आपके पैसे डूब जाएंगे। लोग डर जाते हैं। अब तुम्हें लगता है ना कि तुमने 10 लाख रुपए कहीं पे लगाए हैं, वो 10 लाख भले 11 लाख ना बने, लेकिन 9 तो नहीं बनने चाहिए, 10 का 10 वापस आ जाए। आपको पता चल रहा है कि अच्छा वैल्यू घट रही है, तो 10 की घट के 9.5 हो गई, 9 हो गई, तो तुम्हें लगेगा कि भैया इससे पहले कि 10 मेरा 0 हो जाए, 5 हो जाए, आधा हो जाए, ये थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल लूं मैं अपने पैसे लेके। और यही थॉट सबके पास आ गया, सब डर जाते हैं। जो पूरा लोन वगैरह का सर्विस चल रहा होता है उन सब को छोड़कर भागते हैं और सब अपने पैसे वापस निकालने लग जाते हैं मार्केट से, और इस चक्कर में जो मार्केट है वो क्रैश कर जाता है। तो ये क्रैश करके क्या आ जाता है, ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। अब यूएस, जैसे हमने बताया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अच्छे खासे देशों की बैंड बजी हुई थी, किसी के पास पैसा नहीं था, यूएस ही था जिसकी बिजनेस काफी ग्रो कर गई थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जब सब लोग लड़ाई कर रहे थे, यूएस शुरू में वर्ल्ड वॉर 1 में भी नहीं घुसा था, ये क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, खाने का, कपड़े का बिजनेस बना रहे थे। क्योंकि वैसे तो पहले ये सारा बिजनेस था ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश ही संभाला करते थे, बट जब वॉर शुरू होता है ना, तो ये सिर्फ वॉर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कि बंदूकें बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, सोल्जर्स के कपड़े बना रहे हैं, बाकी चीजों में कुछ ध्यान नहीं था। खाना वाना प्रोड्यूस करना, वो मार्केट चलाना, सब छोड़ दिया था इन्होंने। यूएस ने उनको रिप्लेस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, न्यूजीलैंड ने, ऐसे कुछ कंट्रीज ने उनकी जगह ली। उसमें सबसे ज्यादा बड़ा यूएस ने लिया था, उन्होंने काफी पैसा बनाया था। तो बहुत सारे कंट्रीज ने इनसे उधार लिया था, इंक्लूडिंग ब्रिटेन एंड जर्मनी की तो पूरी लाइफ सेवियर ही ये बन गए थे। लेकिन इनकी वाट लग जाती है। वाट क्यों लग जाती है? क्योंकि यूएस में आ जाता है डिप्रेशन, और इस ग्रेट डिप्रेशन का असर पूरी दुनिया में होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, हर जगह बर्बादी छाती है। 2008 में भी बच्चे एक ऐसा ही रिसेशन आया था, हुआ शुरू यूएस से था, बट द एंटायर वर्ल्ड हैड टू सफर। बट सबसे ज्यादा तगड़ा झटका जर्मनी को लगता है। एक तो हाइपर इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम अभी भी थी, जिंदगी थोड़ी बेटर ही हो रही थी, लेकिन यूएस की इकोनॉमी जब क्रैश होती है, पूरी दुनिया में हो जाती है कि बत्ती गुल, जर्मनी का सबसे ज्यादा हो जाता है। अब जर्मनी में क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह ले रहे थे उसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, प्रोडक्शन बढ़ाया था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया था, जिंदगी बेहतर करने ही लग गए थे। लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो प्रोडक्शन खत्म, वर्कर्स की जॉब चली गई। जो यंग लड़के बच्चे थे जब जॉबलेस हो जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रिमिनल्स बनने लग जाते हैं। जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, गरीबी छाएगी, आप भूखे होगे, तो आप किसी से पैसे लूटोगे, ठीक है, खाना लूटोगे, आपको अपना पेट भरना है, आपको सर्वाइव करना है, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अनएम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेसेस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं उनकी बिजनेसेस तो बंद हो जाती हैं। जो बड़े बड़े अच्छे खासे अमीर लोग थे वो प्रोलेटेरियनाइजेशन के डर से घूमने लग जाते हैं। प्रोलेटेरियनाइजेशन का डर क्या होता है? आपको ये डर होता है कि आप जहां पे पहले किसी बड़ी चीज के ओनर थे, अब आपकी रैंक, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकली और सोशली, मतलब आपका जो स्टेटस है वो रिड्यूस होकर के ऑफ वर्कर आ जाएगा। कि कहाँ पहले मैं 100, 200, 500 लोगों को एम्प्लॉय करती थी, अब मुझे लग रहा है मुझे शायद खुद ही जाकर किसी के यहाँ नौकरी करनी लग जाएगी। लोग अपने गले के अराउंड प्लैकार्ड्स लेकर के घूमने लग गए, कार्ड्स लगाकर घूमने लग गए कि कोई भी काम दे दो, इतने से पैसे के लिए मैं करने को तैयार हूँ। ऐसी सी हालत हो गई थी। अब ऐसे में वो उम्मीद कर रहे थे सरकार हेल्प करेगी, और सरकार आर्टिकल 48 और अपने रिप्रेजेंटेशनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट की वजह से कोलिशन बना बना करके अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी। वैसे ही उनको नवंबर क्रिमिनल्स होने की वजह से वो बड़े दुखी, मतलब गुस्से में रहते थे, लोग उनसे नाराज ही रहते थे। उनकी कोई मदद नहीं की सरकार ने। ये पूरा हिस्ट्री है, ये पूरा बैकग्राउंड है, पूरा कॉन्टेक्स्ट है जर्मनी का।
अब ऐसे वक्त में लोग काफ़ी कन्विंस हो गए कि हमारी सरकार मदद नहीं कर रही है, प्रॉबली हमें कोई डिक्टेटर ही चाहिए जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, हमारी ज़िंदगी बेटर बनाएगा। और इसी समय उनका मसीहा बनकर हिटलर उनको ब्राइटनड अप दिखता है, बिकॉज वो ग्लोरीफाई करेंगे अपनी हिस्ट्री को, अपने कंट्री को, बोलेंगे हम लोगों को जॉब्स देंगे, उम्मीदें देंगे। बट सबसे ज़्यादा इस वक्त जो लोगों को ज़रूरत थी, इवन मोर देन जॉब्स एंड एवरीथिंग, वॉज द सेटिस्फैक्शन, वॉज द बिलीफ, ठीक है, एक संतावना, एक कॉन्सलेशन कि आपकी जिंदगी में ठीक होंगी चीजें, हम करेंगे आपके लिए। वो वाइमार रिपब्लिक यही नहीं कर रहा है, और ऊपर से और जो है डिसअपॉइंटमेंट ही दिए जा रहा है। तो हिटलर की कहानी अगर देखें तो हिटलर वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1889 इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। और वैसे तो वो ऑस्ट्रियन थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते कैसे भी करते जर्मनी पहुंच जाते हैं, यहाँ की आर्मी को ज्वाइन करते हैं। एक पतला दुबला सा छोटा सा बच्चा होता है, यंग सा लड़का, आर्मी में क्या करेगा, तो मैसेंजर रहता है, वो मैसेंजर कॉर्पोरल जो चिट्ठियां यहाँ से वहाँ ले जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दैट्स हाउ ही स्टार्टेड वर्किंग, बट कोइंसिडेंटली ही वाज वेरी लकी बाय द वे, बड़े पैशन से अपना वो काम भी करते थे। लेकिन 2 बार वो अटैक में ऐसा फंसते हैं कि सारे लोग मर गए, बट ही सर्वाइव्ड, ठीक है, एंड ही ऑल्सो सेव फ्यू पीपल, ऐसे कुछ हुआ। तो जब मतलब ऐसे भी फिगर आउट करके ही इंश्योर्स कि रिवॉर्ड उन्हें मिल जाए, रिकग्निशन मिल जाए, ताकि रैंक जो है वो बेटर हो जाए। और पहली बार ऐसा होता है, दूसरी बार भी जब ऐसा होता है तो हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाता है। बाय द टाइम ही गेट्स डिस्चार्ज्ड, वॉर खत्म हो चुका होता है, जर्मनी हार गई होती है। ऐसा निकलते ही जब उन्होंने सुना इस बारे में और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में सुन के बाद, तो उनके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल टूट गया, बिट्रेयल, अग्रेशन, अनोयंस, डिसअपॉइंटमेंट, हर एक तरह की फीलिंग जो आ सकती थी वो दिल में आ गई, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी उसके बाद ज्वाइन कर लिया, जिसको लेटर ऑन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बनाया जाता है, जो उसके बाद नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इनको लगता है कि यार मैं सोल्जर हूँ, लेकिन यहाँ इन सब में चीज़ों में तो अब कुछ रह नहीं गया है, किस चीज़ की ग्लोरी के लिए लड़ूँ, अब तो आर्मी भी नहीं है, तो पॉलिटिक्स ही ज्वाइन कर लेते हैं शायद, क्योंकि जो अभी सरकार कर रही है वो गलत है। आई डू नॉट अग्री विद दिस, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस बात पे जो है वो नाजी पार्टी बना लेते हैं, मतलब अपनी उस पार्टी में ज्वाइन करने लग जाते हैं। 1932 तक वो लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। तो बच्चे, ये जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, ठीक है, वापस आने के बाद हॉस्पिटल वगैरह से इमीडिएटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद इलेक्शन वगैरह लड़ने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, तुरंत पहली बार में लोग नहीं माने थे। बट हिटलर वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी डिटरमाइंड, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड अ वंडरफुल ओरेटर। मतलब भैया बात ऐसी बोले कि जिससे आप अग्री ना भी करो, पर बोलने वाले का चार्म ऐसा है कि आप बह जाओगे भावनाओं में उसकी बात पे, आप बिक जाओगे उनकी बात पे। ऐसे बोलते थे हिटलर, तो सारे लोग पट जाते थे, बिल्कुल बह जाते थे भावनाओं में, आ जाते थे नाजिज्म के आइडियोलॉजी में, की बिलीफ में कि हाँ ये सरकार गिराओ, एक नई सरकार बनाओ, हमें इस देश को सबसे आगे बढ़ाना है। एंड ही यूज्ड टू सेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैक एट दैट टाइम दैट पीपल वर लुकिंग फॉर, होप ऑफ स्टेबिलिटी, अ बेटर फ्यूचर, पीस। उम्मीद दे रहे थे वो लोगों को, और लोग मान रहे थे। तो पहले इलेक्शन में तो उनकी हालत काफ़ी टाइट रहती है, लेकिन 1932 में जो इलेक्शन होता है, ऐसे करके 37% वोट्स के बाद एकदम बड़े पार्टी बन जाते हैं ये, और नाजिज्म एक मास मूवमेंट बन जाता है। और इसके पीछे ग्रेट डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में जब बाकी के लोग कुछ नहीं कर रहे थे, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की प्रोमिसेस की, बेटर फ्यूचर की प्रोमिसेस की, बात की कि कैसे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, और वैसे इन्होंने अपनी कहानी लिखी। अब एक दूसरा सवाल ये आ सकता है कि आखिर क्या वो इवेंट्स थे जिसकी वजह से राइज ऑफ हिटलर टू द पावर होता है, कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी होती है। तो ये हम समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया 1932 के इलेक्शन में, इसके पहले इलेक्शन में वो हार गए थे, बट 1932 के इलेक्शन में ये काफ़ी वोट समेट लेते हैं। काफ़ी वोट समेटने के बाद इनको बना दिया जाता है चांसलर, प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हो। और वो भी जो प्रेसिडेंट है वो बनाना नहीं चाहते थे, जोर ज़बरदस्ती जो है, by hook or by crook, he put him in such a tight spot that he had to give him the chancellorship. उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ गया। और सोच रहो, एक इंसान जो कॉर्पोरल मैसेंजर था वर्ल्ड वॉर 1 में, वो अगले 10 सालों में बन जाता है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे, एक बड़ी लीडरशिप की पोजीशन पे, जर्मनी जैसे कंट्री में। तो 1933 के जनवरी में जब हाईएस्ट पोजीशन मिलती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में उनको, ठीक है, हेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, he now had legit power in his hand to fulfill his agenda. What was his agenda? Destroy democracy, make it a dictatorship in Germany. तो अचानक से एक मिस्टीरियस फायर उमड़ पड़ती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में फेब के महीने में आपका अचानक से
आग लग जाती है और मिस्टीरियस रहता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। बाद में हम देखते हैं अगर तो हम समझ सकते हैं कि शायद ये क्यों और किसने किया होगा, लेकिन वो क्या एक डर फैला देते हैं कि वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, हमारे एनिमीज अभी भी हमारे अराउंड है, हमें सतर्क रहना होगा। तो हम फायर डिक्री लगाएंगे। फायर डिक्री एक तरीके से इमरजेंसी लगाएंगे, सारे लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ों को जो रूल ऑफ लॉ वगैरह है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें हमारी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना है। तो हिटलर जो है अब क्या करते हैं, फायर डिक्री लगाते हैं 28 फरवरी को, जहां पे लोगों के सिविल राइट्स ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, यानी कि कहीं से जो कुछ लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते थे, कई सारे लोग कन्विंस थे बट कई सारे लोग तो नहीं भी थे ना, अभी उनको दबाने की पूरी तैयारी कर ली जाती है। धीरे धीरे जो बाकी सोशलिस्ट वगैरह थे उनको भी वो दबा देते हैं। और बाय द वे बच्चों, इसके पहले उन्होंने एक जो है अपराइजिंग कर ली थी वाइमार रिपब्लिक के अगेंस्ट, जब उनको एग्जाइल में यानी कि जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो उनको भी दबाते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया जाता है, स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्स लगा दिया जाता है, और ये फायर डिक्री लगता है 28 फरवरी को। जब ये सब कुछ सेट हो जाता है तो उन्हें लगता है कि ये परफेक्ट मौका है। अगले 2 दिन में he puts up the most dreadful act of the history, enabling act of 1933, जहां पे he destroys the democracy and enables dictatorship। यानी कि 3 दिनों में पूरी जर्मनी की कहानी बदल जाती है, डेमोक्रेसी से वो बन जाती है डिक्टेटरशिप विद द इनेबलिंग एक्ट ऑफ मार्च। ठीक है, तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द इनेबलिंग एक्ट ऑफ मार्च 1933 गेव हिटलर द पावर टू रूल बाय डिक्री, यानी कि रूल बाय लॉ, कि वही लॉ बन जाते हैं, जो वो चाहते हैं वही करते हैं। ओके, एंड दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली एब्सोल्युटली ट्रू। इसी के बाद तो पूरी भर भर के ताकत आ जाती है उनके हाथों में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो बन चुके हैं डिक्टेटर, लेकिन कुछ चीजें हिटलर ने अच्छी की। Hitler genuinely wanted Germany to be the most powerful country in the world, and he wanted to do everything possible in his powers to make that happen. So destruction of democracy जरूर होता है, but reconstruction of economy भी होता है। So what he starts doing is, first of all, he hires a specialist, an expert. हाइमार शात नाम के एक इकोनॉमिस्ट को हायर किया जाता है, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अब आप जो है ऐसा प्लान बनाओ कि जर्मनी की रिकवरी हो सके इकोनॉमिकली। अब देखो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो उन्होंने की है। वाइमार रिपब्लिक अगर ऐसे कुछ स्टेप्स लेता तो शायद उन्हें कभी हटाने की नौबत ही नहीं आती। ठीक है, तो अब वो शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हम अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो कैसे जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, तो हम चलाएंगे स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि डैम्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, और ये किसके खर्चे से बन रहा है, सरकार के खर्चे से बनेगा। लेकिन इसमें लोग कौन काम करेंगे, सिटीजन्स काम करेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग गई। बट साथ ही साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं। और बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। रोड्स बनते हैं तो आप बेटर प्रोडक्शन करते हो, मार्केट एरिया एक्सेसिबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, लोग इधर उधर मूव करते हैं, देश में पैसा रेगुलेट होने लग जाता है, ट्रेडिंग बेटर होने लग जाती है। और जर्मन सुपर हाईवेज जो इतने फेमस है आज के डेट में, उसकी शुरुआत जो है वो हिटलर ने करी थी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा पीपल्स कार बनाएंगे। फोक्स वैगन में एक जैसे बीटल नाम की गाड़ी आती है, अब बंद हो चुकी है, बट आपने देखा होगा, छोटी सी बड़ी क्यूट सी कार है, बहुत महंगी मिलती है। अब तो खैर बंद हो गई है, तो और महंगी मिलेगी, क्योंकि अब वो क्लासिक मॉडल बन जाएगा। बट उस वक्त वो बहुत सस्ते दामों में लोगों को अफोर्डेबिलिटी के लिए दिया जा रहा था, कि लोग अपने काम पे आराम से जा सके, गाड़ी खरीद सके, प्रोग्रेस कर सके। तो फोक्स वैगन, फोक्स मतलब पीपल, वैगन मतलब कार इन जर्मनी, तो पीपल्स कार बनाई जाती है, और ये सब स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट होता है। तो कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये कंपनी अपनी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करी, आज रहेगी कल नहीं रहेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली प्रॉब्लम। उसके बाद राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया। राइनलैंड याद है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में छीन लिया गया था, रिसोर्सफुल लैंड वापस लिया गया, ये 2 मेरा है, मैं अपने रिसोर्सेज यूज करके आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस अहेड। 1936 में राइनलैंड को वापस ले लिया जाता है। उसके बाद बड़े दिमाग से उन्होंने सोचा कि अकेले तो भाई चल पाना मुश्किल है, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी प्रोग्रेस करते रहनी है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को एनेक्स करना होगा, अपने अंडर लेना होगा, और उसके लिए वॉर वॉज हिज आइडिया। लेकिन एक देश था ऑस्ट्रिया, वेयर ही वॉज बेसिकली फ्रॉम हिमसेल्फ। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया को जाके कहते हैं कि भैया हम 2 देश, बट भाई तो एक ही है,
ठीक है, तो हम भाई भाई हैं, तो हम क्यों ना हाथ मिला लें। और इस बहाने से ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर दिया जाता है जर्मनी में 1938 में। ये डेट्स याद रखेंगे हम, ठीक है। 1938 हो गया और आपका 1933 हो गया, ऐसे जो भी डेट्स है प्लीज रिमेंबर इट। उसके बाद सुडेंटन लैंड जो एक जगह थी जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, अपने मर्जी से उसको ऑक्यूपाई कर लिया कि ये तो हमारे ही लोग हैं, तो ये लैंड तो हमारा ही है, इसको लाओ हमारे पास। एंड देन ही फाइनली डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू चूज वॉर टू रिकवर द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि आर्मी दोबारा खड़ी करेंगे, जो मना कर रखा गया था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंडर। आर्मी दोबारा खड़ी करेंगे, लड़ाई करेंगे, एनेक्स करेंगे, अपने पावर को वापस लेंगे। हाइमर शाह वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस, ही डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। तो हिटलर ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम कटो यहाँ से, तुम जाओ, बाय बाय बोलो हमें, निकलो। तो उनको बाय बाय कर दिया। अब हिटलर चल पड़ते हैं, अपनी आर्मी बनाते हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं आर्म्स एम्यूनेशंस को बनाने में, नई चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, ठीक है। इनफैक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब की शुरुआत यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में वहीं से जर्मनी ने ही करी थी, जब फिर उसके बाद यूएस वगैरह बाकी सब लोग करने लग जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अटैक वाला सिस्टम शुरू कर दिया। ऑफेंसिव खेल रहे थे कि हम तुमसे लड़ने आ रहे हैं, तुम बचाओ अपने आप को, और हमें तो बनाना है बड़ा देश। ऐसा करते करते सबसे पहले पोलैंड में इन्वेजन कर दी 1939 में। ये जगह ले ली गई थी जर्मनी से, जो फ्रांस को दे दी गई थी आपके वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। इन्होंने पहले भी घेरा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब जब पोलैंड फ्रांस ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन जब लिया जाता है तो फ्रांस गुस्सा हो जाता है, फ्रांस गुस्सा होकर लड़ने लगता है। इंग्लैंड उसका भाई था, दोस्त था बड़ा अच्छा पक्का, वो आ जाता है कि भाई अब दोस्त से लड़ाई करोगे तो हम तो तुमसे लड़ेंगे। अब ये दो देश इनके साथ पहले ही पड़ जाते हैं लड़ाई में। ऑस्ट्रिया को पहले ही जर्मनी ने पटा लिया है। अब ये जाते हैं इटली के पास। इटली में पूरा फासिज्म वाला चल रहा होता है रूलिंग, जहाँ पे मतलब डिक्टेटरशिप जैसा ये हिसाब समझो। तो वहाँ के रूलर और इनके हिटलर के बीच में बड़ा तालमेल बैठता है, वाइब मैच कर जाती है इनकी, ठीक है। तो वाइब मैच कर जाती है, तो अब ये ट्राई पार्टी एक्ट बनाते हैं 1940 में। एक पर्चा साइन करते हैं कि हम तीनों यार हैं। अब तीन यार कौन से, इटली है, जर्मनी है, और उसके साथ जापान भी आ जाता है। जापान को भी बड़ा पंगा हो रहा होता है, ये बाकी देशों से बहुत नाखुश था। 1941 में अब क्या है कि इसके पहले तक जो सुडेंटन लैंड ले लिया, पोलैंड को अटैक कर दिया, फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ाई कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। जर्मनी जीत रहा है, अच्छी खासी ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं, बढ़िया से बढ़ रहा है। और बच्चे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है बाय द वे, ठीक है। 1939 में पोलैंड में जब लड़ाई की और ये दो देश आ गए, यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। अभी ज़्यादा देश इन्वॉल्व नहीं हुए, पर पहले ही 1 वर्सेस 2 हो रहा था, अब 3 वर्सेस 2 हो रहा है। अब इस वक्त क्या करता है, यही गलती हो जाती है जर्मनी से। देखो जर्मनी जो उसकी प्लेसमेंट है ना, जर्मनी अगर यहाँ है तो इस तरफ फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ रहा था, और इस तरफ बड़ा सा बेर बैठा है रशिया। उसने रशिया को जाके उंगली कर दी, उसने कहा ए बेर, आई एम पोकिंग यू, व्हाट विल यू डू, आई विल टेक योर लैंड अवे। बट इट्स द बेर, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोर ऑन टॉप ऑफ दैट, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ये जो दो मतलब जर्मनी यहाँ है, तो इधर इंग्लैंड ईस्ट के साइड पे इंग्लैंड और फ्रांस से पहले ही लड़ा था। अब उसको वेस्ट के साइड पे भी लड़ना पड़ता रशिया से। उसकी आर्मी पूरी डिवाइड हो रही थी, रिसोर्सेज डिवाइड हो रही थी, दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे। हालांकि वो रशिया में घुस गया था बहुत अंदर तक, और सेम चीज उसने फ्रांस, एम्स्टरडैम, नेदरलैंड सब जगह घेरा डाल लिया था। लेकिन दोनों तरफ से खदेड़े भी जा रहे थे ना, तो उनकी मुश्किल भी बढ़ रही थी, उनके रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम थी, और इतने ज्यादा पैसे तो डेवलप नहीं हो गए थे। सोवियत यूनियन को जो उन्होंने कर दिया, दोनों तरफ ईस्ट फ्रंट और वेस्ट फ्रंट पे वो फंस जाते हैं, और वही गलती हो जाती है, और उस वजह से अल्टीमेटली दे एंड अप लूजिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसमें भी जब यूएस आ जाता है, रशिया पहले हार रहा होता है, बट जैसे यूएस आता है पूरी बाजी ही पलट जाती है। तो सोवियत आर्मी जो है वो डिफीट कर देती है जर्मन को। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि सोवियत आर्मी बहुत जर्मन आर्मी बहुत अंदर तक रशिया की घुस गई थी। सो मच सो, जो आप रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ते हो इनफैक्ट, कि जो उनकी आर्मी पीछे भाग रही थी, ठीक है, व्हेन दे वर रिट्रीटिंग, जब वो रिटर्न कर रहे थे, अंदर घुस रहे थे, क्योंकि जर्मन आर्मी आ रही थी, वो घरों को और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए घुस रहे थे, ताकि उनके पास रहने के लिए और खाने के लिए कुछ ना हो, सो दैट दे आर नॉट एबल टू सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग। तो जर्मनी ने काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग पकड़ जमाई थी अपनी, लेकिन रशिया उनको वापस कर देता है, क्योंकि बहुत हार्श विंटर्स आ जाते हैं, ऐसे कंडीशंस बिल्ड हो जाते हैं जो जर्मनी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूएस अभी तक घुसा नहीं था वॉर में, यूएस का हो गया था, यूएस का था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। मैंने इतना डिस्ट्रक्शन, इतने लॉसेस देखे हैं, आई फाइनली बिकम अ सुपर पावर। मेरे को यार अपना काम करने दो, बिजनेस करने दो, ट्रेड करने दो, पैसे बनाने दो, मैंने नहीं घुसना है। जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब वाली बात सुनी थी, आइंस्टाइन ने जाकर के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा था कि भैया ये बड़े खतरनाक लोगों के हाथ में बॉम्ब लग गया है। तो उन्होंने अपना बॉम्ब बना के रेडी कर लिया था कि अगर इनसे लड़ना पड़े तो हमारे पास एक वेपन रहेगा, लेकिन कुछ किया नहीं था।
लेकिन जापान जाकर के दूसरे शेर को जगा देता है। यहाँ पे जर्मनी ने रशिया को जगा दिया, जापान ने यूएस को। यूएस से गुस्सा होकर के वो क्या करते हैं, पर्ल हार्बर उनके उस पे पैसिफिक में बॉम्ब गिरा देते हैं। अब यूएस कहता है कि तुमने हमें छेड़ा है, तुम शांत थोड़ी रहेंगे, अब हम वॉर लड़ेंगे। वो आते हैं, सपोर्ट करना शुरू करते हैं अलाइज को, यूएस एंटर करता है और फिर क्या होता है, जर्मनी हार जाती है। इनफैक्ट जर्मनी की डिफीट हो जाती है, जर्मनी जो है उसने गिव अप कर दिया होता है। जापान फिर भी लड़ रहा होता है, इंडिया में भी ब्रिटेन से लड़ने के लिए घुस रहा होता है, अलग अलग जगह लड़ रहा होता है। ये लड़ाई चली रही होती है फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम टिल द पॉइंट यूएस ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, और तब जाके जापान कहता है कि नहीं, दिस इज इट। और आज के उसके बाद तो उन्होंने कोई वॉर नहीं लड़ा कि हमको करना ही नहीं है, हमको लड़ाई करनी नहीं है, हमें आर्मी नहीं चाहिए। द डिस्ट्रक्शन वॉज अ लॉट एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, जहाँ पे हिटलर की डिफीट होती है। बेसिकली जो सेंट्रल जो ये ट्राई पार्टी एक्ट वाले पार्टीज थे उनका डिफीट हो जाता है। ठीक है, तो ये नाजी का वर्ल्ड मतलब नाजी कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ, जर्मनी में क्या चल रहा था, ये सारे सेक्शंस हो गए। अब नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, नाजी इक्वालिटी में कतई बिलीव नहीं करता था, चाहे वो औरतों के बीच हो, मर्दों के बीच हो, या फिर बाकी इन जनरल डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के बीच में हो। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडिया दिया था, मतलब अपनी साइंटिफिक एक स्टडी की थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, और चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थी, यानी कि जो लोग अडेप्ट कर लेते हैं उनको नेचर सेलेक्ट करता है, वो आगे लंबा जीते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोला कि 5 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से जो 2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी 3 ज़्यादा लंबा नहीं जिएंगे। इन दोनों के आइडिया को मसल करके एक सूडो साइंटिफिक यानी कि नकली साइंटिफिक आइडिया बनाया हिटलर ने। क्या था ये आइडिया, कि उसने ये बोला, और इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं थी, इट वाज जस्ट हिज ओन क्रिएटेड फसाड, आप कह सकते हो, एक आइडिया था, विच वाज कि जो नॉर्डिक आर्यंस होते हैं, यानी कि नॉर्वे से आए हुए जो आर्यंस होते हैं विथ ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, फेयर स्किन, वो सबसे फिट होते हैं, और जर्मनी में ज़्यादातर वैसे ही लोग मिलेंगे आपको, वो सबसे फिट होते हैं रेशियली, बाकी जितने लोग होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक हायरार्की बना दी, एक ऑर्डर ऑफ लिस्ट बना दी कि ये सबसे फिट, ये सबसे फिट, ये सबसे फिट, ये कमज़ोर, ये और कमज़ोर, ये सबसे कमज़ोर, ऐसे करके हायरार्की बना दी। तो जो ऊपर फिट में लोग हैं, जिसमें नॉर्डिक आर्यन हो गए, ये डिजायरेबल लोग हो गए, और जो नीचे वाले हो गए वो अनडिजायरेबल लोग हो गए। तो ये दोनों साइंटिफिक थ्योरी को मिला के उन्होंने ये बोला कि जो रेसेस कमजोर हैं वो अनडिजायरेबल हैं, उन्हें नेचर आगे चलकर वैसे ही वाइप आउट कर देगा, क्योंकि वो कमजोर रेसेस है, फिट नहीं है, प्योर नहीं है। तो जब नेचर उन्हें वाइप आउट कर ही देगा, तो क्यों ना हम एक रेशियल स्टेट आज ही बना ले, एक ऐसा देश बना ले जहां सिर्फ डिजायरेबल लोग रहे और बाकी लोगों को हम अपने हिसाब से एलिमिनेट कर देते, खत्म करो इनको, सफाया करो इनका। ठीक है, तो नॉर्डिक जर्मन्स को टॉप पे रखा गया। अब ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, हैंडीकैप्ड पीपल, रशियंस, पोल्स, ये सब नीचे आ रहे थे उनके हिसाब से। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, ऐसा ही डिसाइड किया कि जगह ऐसी बनेगी कि नॉर्डिक आर्यंस ही रहेंगे, बाकी लोगों का सफाया होगा। उसी में एक नई एस्पेक्ट भी दी उन्होंने, लेबेंसड्रॉम या लिविंग स्पेस का, जहां पे बेसिकली व्हाट ही सेड। अब आपको हो सकता है लेबेंसड्रॉम डिफाइन करने आ जाए 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, तो ये अच्छे से समझ लेना। उन्होंने ये बोला कि अब लोग स्प्रेड हो रहे हैं, हमारे पास इनफ स्पेसेस होना चाहिए फॉर जर्मन पीपल टू एक्सप्लोर देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी, प्लस दीज आर द लिविंग स्पेसेस, इट शुड बी एक्सेसिबल टू देम। ऐसे करके लिविंग स्पेस बनने लग जाता है, रेशियल यूटोपिया एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ हाई ऑर्डर रेसेस रहेंगे, डिजायरेबल्स रहेंगे। और इस चक्कर में पोलैंड को जब इन्वेड करते हैं तो क्या किया जाता है, जैसे कि पोलिश लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो तो अनडिजायरेबल होते हैं। जो भी बच्चे नॉर्डिक आर्यन जैसे दिखते थे, अपने पोलिश पेरेंट्स से उनको अलग कर देते हैं, उनकी टेस्ट कराई जाती है जीन्स की बाय द जीन साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स। अगर वो प्रूफ होते हैं टू बी ऑफ द सेम जीन, तो उनको किसी फॉस्टर होम में भेज दिया जाता था। अगर प्रूफ होता कि नहीं ये तो पोलिश ही है, तो उनको जो है ऑर्फनेजेस में भेज दिया जाता था, जहाँ पे उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी, इतना काम कराया जाता था, उनकी मौत वैसी हो जाती थी, पेरेंट्स के पास वापस भी नहीं भेजते थे। तो डिवाइड कर दिया उन्होंने नॉर्थ और वेस्टर्न पोलैंड को, पोल्स को फोर्स कर दिया घरों को छोड़ने के लिए, और उन सारी जगहों को लिविंग स्पेस बना करके जर्मन्स को भेज दिया कि जाओ जाओ एंजॉय करो। एडुकेटेड पोलिश क्लासेस को स्पेशली मर्डर कर दिया गया, यानी कि इंटेलिजेंशिया जो थी, यानी कि इंटेलिजेंट लोगों की जो ग्रुप्स थे, उनको एलिमिनेट किया जा रहा था, बिकॉज दोज आर स्मार्ट स्कॉलर पीपल। वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिला सकते हैं, पलट सकते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों को जिंदा ही मत रहने दो, जो बाधा बने, जो कांटा बने हमारे रास्ते में, उनका कर दो सफाया। ठीक है,
तो उनकी ज़मीन छीन ली गई, सब कुछ कर दिया गया और उनको एक डेडिकेटेड बंद स्पेस में, डेजिग्नेटेड स्पेस में भेज दिया गया कि आप पूरी सोसाइटी से दूर यहाँ रहोगे, जिन्हें गेटोज कहते थे। गेटोज बच्चे फॉर डेडिकेटेड स्पेस फॉर ज्यूज, फॉर पोलिश, फॉर ऑल द अनडिजायरेबल ग्रुप्स के अलग अलग उन्होंने गेटोज बना रखे थे, जहाँ उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, खाना नहीं देते थे, बहुत बीमारियां फैलती थी, कोई इलाज नहीं कराते थे, बहुत बुरी कंडीशन रहती थी, या तो वो खुद ही मर जाते थे या तो उनको खुद ही मार देते थे ये लोग गैस चैम्बर्स में ले जाके। गैस चैम्बर घुसो तो लगेगा कि अच्छा ये तो शार जैसा दिख रहा है, बट वहां पे पॉइजनस गैस निकलती थी और लोग लाखों लाख लोग एक बार में झटके में खत्म हो जाते थे, और ऐसे जेनोसाइड हो रहा था जिसे हम होलोकास्ट के नाम से जानते हैं। ज्यूस को स्पेशली टारगेट किया था हिटलर ने, बिकॉज हिटलर यूज्ड टू फील कि सबसे पहले ही यूज्ड टू सी ज्यूज एज द एनिमी ऑफ जर्मनी। यूज्ड टू फील दैट जर्मनी का जितना भी पैसा है ना वो ज्यूज अपने पॉकेट में दबा करके बैठे हुए अपने सक्सेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यूज ही मैक्सिमम, जैसे कई जगह ऐसा होता है, जैसे इंडिया में आप देखोगे देर आर सर्टेन पीपल लाइक द पारसीज, द गुजरातीज, दे वेरी गुड बिकॉज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि दे हैव अ नैक फॉर इट, बचपन से यही देखते हैं, कल्चर ऐसा है। तो कुछ लोग बड़े गुड होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं बहुत बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में, ज्यूज वैसे ही थे वहां पे। तो उन्होंने काफी सारा कंट्रोल कर रखा था बिजनेस को, फ्लो ऑफ मनी को जर्मनी का, तो उनको दुश्मन की तरह दिखाया जाता है। और जब इतने सारे पैसे आपके पास होते तो आप बाकी लोगों को लोन भी देने लगते हो, लोन देते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो, और वो थोड़ा ज्यादा हाई भी किया करते थे अपना धंधा बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए। लेकिन उनको बिल्कुल विलेन की तरह पोर्ट्रे कर दिया, ठीक है, कि ये पैसा लूट रहे हैं, ये अल्सरर्स हैं, ठीक है, वो एक दुश्मनी थी। दूसरा उसने कहा कि इनका रेस ही अच्छा नहीं है, या अनडिजायरेबल है, इनको खत्म करो। और इतनी स्टीरियोटाइपिंग बनाई जूस के अगेंस्ट, बिल्कुल मार डाला सबको, इतने सारे लोगों को, लाखों लाख लोगों को। तो नाजी जेनोसाइड जो है वो एक बार में नहीं हुआ, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। आप जब देखोगे तो अलग अलग फेजेस में होता है, और ये फेजेस जो है पूरा पूरा 7 सालों तक चलता है। 1933 से 1939 तक पहले क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। पहले ये बोला जाता है कि आप हमारे बीच के नहीं हो, ठीक है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, एक येलो स्टार पहनो कि हम आपको पहचान सके, अपने घर के बाहर मार्क करो कि हम आपको पहचान सके, आपको हम बेसिक राइट्स जो हमारे नेशन के लिए, जर्मन्स के लिए आते हैं, आपको हम नहीं देंगे। तो क्या किया गया, पहला स्टेप था एक्सक्लूजन, कि तुम्हारे बीच रहे तो रहे हो, लेकिन तुम्हें हम राइट्स नहीं देंगे, तुम हमारे बराबर के नहीं हो, तो हम हमारे लेवल से तुम्हें हटा रहे हैं। दूसरा स्टेप था गेटोइजेशन, कि यार हमें लगता है कि तुम हमारे बीच में रहने लायक ही नहीं हो, ये जगह जर्मन्स की है, जर्मन्स यहाँ पे रहेंगे, तुम एक साइड में जगह पे रहो। तो एक अब पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिया गेटो का, और उनको वहां पे भेज दिया। दिस स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम 1940 ऑनवर्ड्स। 1940 से कुछ सालों तक चला। अब इसी के साथ जो है वो एनिलेशन शुरू हो जाता है। तो गेटोइजेशन में क्या किया जाता है, पुअर एरियाज में उनको रख दिया जाता है, गेटोज में उनको येलो स्टार पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कोई बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते, और 1-2 साल के अंदर में एनिहिलेशन शुरू हो जाता है। यानी कि ये सबसे हॉरेंडस, सबसे ज्यादा डरावना स्टेप था। उनको मारना शुरू कर देते हैं, जिसे वो फाइनल सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि फाइनल सोल्यूशन क्या है, आखिरी उपाय यही है कि इनको खत्म करो, इनको जीने का हक नहीं है। तो पहले बोला कि तुम्हें हक नहीं है कि तुम हमारे राइट्स डिजर्व करो एज अ सिटीजन, फिर बोला तुम्हें हक नहीं है कि तुम हमारे साथ रहो इन द सेम स्पेस, फिर बोला तुम्हें रहने का ही हक नहीं है, तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम्हें हम एनिलेट कर देंगे और खत्म कर देते हैं। तो एक नाजी इन्हें फाइनल सोल्यूशन कहते थे, जिसे बेसिकली हॉलोकास्ट कहते हैं, विच वाज अ जेनोसाइड, मास मर्डर ऑफ द ज्यूज टारगेटेड। तो कई सारे औरतें, मर्द, बच्चे, सबको ट्रेन में भर भर के लाया जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और वहां पे जो है बहुत टॉर्चर करते थे। सर्दियों में रहना, बीमारी में रहना, बहुत मेहनत कराना, थ्रेटन करना, बहुत मुश्किल से रहना, और नहीं तो गैस चैम्बर्स में उनको अल्टीमेटली मर्डर कर देना। तो आपका क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डैश फोर्स्ड ज्यूइश पीपल टू लिव इन सेपरेट नेबरहुड्स इन हॉरिबल कंडीशंस, गेटोइजेशन, गेटोज और गेटोइज्ड, क्या टर्म होगा? तो ये बच्चे बेसिकली जो है द प्रोसेस ऑफ गेटोइजेशन थी, जहां पे उन्हें फोर्स किया जा रहा था अलग अलग जगहों पे रहने के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से ज्यूज के साथ ट्रीट होता है। अब यूथ की बात करते हैं। वर्ल्ड व्यू हम समझ गए, उनका जो नॉर्मल व्यू पॉइंट था वो हम समझ गए। I'll actually just take a quick 1 minute break, have some water, and then we'll start with youth in Nazi.
ओके एंड आई एम बैक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने देख लिया कि जूस के साथ बाकी अनडिजायरेबल्स के साथ ट्रीटमेंट किया कि अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चे देखो, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है ना। किसी भी देश का भविष्य कौन होता है? बच्चे होते हैं वहाँ के। वो फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि उनको जो आप सिखाते हो, पढ़ाते हो, जो भी स्किल सेट वो डेवलप करते हैं, वही जाकर के फ्यूचर में फॉर्म करते हैं और आगे उसी की मदद से बढ़ते हैं। नाजीज के लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज ऑफ कोर्स हिटलर डिड नॉट हैव दिस इन हिज माइंड दैट ही विल फाइट द वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन ही विल लूज इट एंड देन एवरीथिंग विल गो द वे इट वेंट। हिज आइडिया वाज दैट ही विल रूल द वर्ल्ड, ही विल रूल यूरोप, जर्मनी को बहुत बड़ा बना देंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक बहुत स्ट्रांग आर्मी खड़ी हो, उनके सारे जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं वो पहले से नाजिज्म के आइडिया से कन्विंस्ड हो, ताकि वो कन्विक्शन रहे, उनका रास्ता आसान हो जाए। यानी कि बने बनाए पपेट्स चाहिए थे उनके, जो रेडी होते। तो जब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों का माइंड वॉश कर दो, उनको उनके ऊपर जो है अपना जादू चला दो कि जब वो बड़े हो तो इस मान्यता से ही हो कि हिटलर ही भगवान है। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग फर्स्ट वाज सारे स्कूल्स की क्लेंजिंग कराई। क्लेंजिंग का मतलब क्या है? कोई भी टीचर, क्योंकि टीचर अल्टीमेटली पढ़ाता है बच्चों को, जो जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था या जो ज्यू था, उनको पहले निकाला कि इनको हटाओ, ये हमारी सरकार के फेवर में नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ज्यूज, जिप्सीज, अनडिजायरेबल बच्चों को अलग पढ़ाएंगे और हमारे डिजायरेबल नॉर्डिक आर्यन बच्चों को अलग पढ़ाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये भी क्यों करना है, सारे बच्चों को भी निकालो, हम सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। और पूरा करिकुलम चेंज कर दिया, मतलब सारे सब्जेक्ट्स बदल दिए, सब्जेक्ट्स में जो पढ़ाया जा रहा था वो बदल दिया। बचपन से ही स्टीरियोटाइपिंग अगेंस्ट ज्यूज इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चों में। जैसे मैथ्स में अगर प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिया प्रॉफिट लॉस वगैरह का, कुछ इंटरेस्ट का, तो ऐसा बोला कि उसमें लोन शार्क कौन है, लोन देने वाला खराब इंसान कौन है, ज्यू है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों में ही ज्यूज को विलेनाइज करना शुरू कर दिया। बच्चों को, लड़कों को खास करके, लड़कों को ही वैसे तो इस आइडिया से ही बड़ा किया जा रहा था कि आगे चल के उनको जर्मनी के लिए लड़ाई करनी है, वो आर्मी में जाएंगे। तो उन्हें बचपन से स्पोर्ट्स जैसे रेसलिंग वगैरह चीज सिखाई जा रही थी, अग्रेशन सिखाया जा रहा था, वॉर रेडी बनाया जा रहा था, स्टील हार्टेड बनाया जा रहा था, विथ लेस इमोशंस और नो इमोशंस। ये सारे बदलाव उन्होंने कर दिया और नाजिज्म के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस तरीके से ब्रेन वॉश और आपका पूरा माइंडसेट फॉर्मेशन बचपन से ही शुरू कर दिया, बिकॉज यूथ वॉज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ जर्मनी। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले टीचर्स को हटाया, उसके बाद बच्चों को हटाया, और इनफैक्ट बच्चों को स्कूल से ही नहीं हटाया, बाद में तो उनको गैस चैम्बर्स में ले जाकर के मार ही दिया। ठीक है, एक बहुत लंबी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग की इस बच्चों के लिए, टेक्स्ट बुक को रीराइट किया। रेशियल साइंस बचपन में इंट्रोड्यूस कर दिया। रेशियल साइंस जैसा कुछ था नहीं, उसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग थी नहीं, बट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उनको लॉयल होना सिखाया। किसकी तरफ? लॉयल होना टुवर्ड्स द नाजी गवर्नमेंट। उनको सिखाया सबमिसिव बनो, यानी कि अपने सरकार की तरफ। ठीक है, यानी कि आवाज मत उठाओ, अगेंस्ट मत जाओ अपने सरकार की, नॉट दैट इन जनरल, बाकी सबसे तुम्हें लड़ना है। ज्यूज को हेट करो और पूजा करो हिटलर की। उसके बाद एक फॉर्मेट बना दिया कि 10 साल तक बच्चे पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, 10 साल के होंगे तो ह्यू फोक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को एंटर करेंगे, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। वहां पे भी सेम चीज के लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग होगी। जब वो 14 साल के हो जाएंगे तब वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, हिटलर यूथ जिसका नाम था। यानी कि अप टू 10 ईयर्स बेसिक ट्रेनिंग चल रही है नाजिज्म की ही, माइंडसेट वगैरह फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, 10 to 14 ईयर्स वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं ह्यू फोक में। ठीक है, 14 ईयर्स के बाद कहाँ जा रहे हैं? हिटलर यूथ में। उसके बाद उनका काम क्या था? इसके बाद उन्हें ज्वाइन करना था लेबर सर्विसेज एट 18, तो 14 to 18 समझ लो यहाँ पे है। और उसके बाद ये करने के बाद आप कहाँ जाओगे? आर्मी में जाओगे। किसकी आर्मी में जाओगे? हिटलर की आर्मी में जाओगे और उनके लिए लड़ोगे। ठीक है, तो लड़कों को यही सिखाया गया कि भैया लड़कों का काम है लड़ाई करना है, वॉर रेडी रहना है, देश के लिए लॉयल रहना है, नाजिज्म के लिए जो है भक्त बने रहना है, नाजी का हिटलर की बात माननी है, ऑल ऑफ दैट। लड़कियों का क्या? लड़कियों की इक्वालिटी में बिल्कुल भी हिटलर बिलीव नहीं करते थे। लड़कियों को वो बेसिकली जो एक्चुअली जिस तरीके से देख रहे थे वॉज मोर ऑफ द काइंड ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड मशीन। ठीक है, ही वुड जस्ट बिलीव दैट द रोल ऑफ अ फीमेल वॉज टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ना बच्चे पैदा कर मतलब बच्चों का पैदा होना इतनी ज़रूरी बात क्यों थी हिटलर के लिए? जितने ज़्यादा अकॉर्डिंग टू हिम द डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर बॉर्न,
उतने ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन, उनकी आर्मी सब कुछ बड़ी होगी, उतने ज़्यादा वो स्ट्रेंथ में बढ़ेंगे। तो जहाँ बच्चों को लड़कों को अग्रेसिव, मैस्कुलिन, स्टील हार्टेड होना सिखाया जा रहा था, वहीं पे लड़कियों को अच्छी माँ बनना, सॉफ्ट हार्टेड होना, घर का ध्यान रखना और बच्चे पैदा करना, इसके लिए मोटिवेट किया जा रहा था। और बच्चे कैसे? प्योर ब्लडेड आर्यंस, ठीक है। और हालांकि हिटलर वुड से कि मेरे देश में तो माओ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि वही तो हमें हमारे देश के नागरिक देगी आगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा। लेकिन सारे मदर्स को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। यानी कि अगर आप एक रेशियली प्योर बच्चा पैदा कर रहे हो तो आपकी वाह है, नहीं किया तो आपको ही नहीं पूरे खानदान को पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि अगर एक नॉर्डिक आर्यन फीमेल ने किसी ज्यू से, किसी जिप्सी से शादी कर ली तो पूरे खानदान को जेल में भेज देते थे। औरत के बाल शेव करके, चेहरा काला करके, शेम वाला प्लैकार्ड लगा देते थे उनके गले में, बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता था, प्रिजन कर दिया जाता था, लाइफ बर्बाद कर दी जाती थी, ठीक है। बट जिन औरतों ने डिजायरेबल बच्चों को जन्म दिया, उनको तो ऑनर क्रॉसेस देते थे कि मतलब समझो कि 4 बच्चे किए तो ब्रॉन्ज ऑनर क्रॉस, 6 किए तो सिल्वर, और 8 से ज्यादा किए तो गोल्ड। और उसके ऊपर फैसिलिटी अलग, बच्चे पैदा करने के सर्विसेज आपको हॉस्पिटल में फ्री हैं, ग्रोसरी आपको सस्ते में मिल रही है, और भी कई सारे रिवॉर्ड, मूवी के टिकट्स, ट्रेन के टिकट्स। यानी कि आप बच्चे पैदा करो तो आपको गवर्नमेंट ऐसे ट्रीट करेगी जैसे आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है, ताकि औरतें और मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। और जो बच्चे नहीं करते थे, जो औरतें नहीं करती थी इसको फॉलो, उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता था, जहां पे पब्लिकली उनको बहुत सीवियरली पनिश और अशेम किया जाता था, ठीक है। So what happened to the women who gave birth to the undesirables? जो औरतें अनडिजायरेबल्स को जन्म दे रही थी, उन औरतों के साथ क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, फोर्स किया जाता है और बच्चा करने के लिए, पनिश किया जाता है, कंडेम किया जाता है, और नन ऑफ द अबव। तो बच्चे हमें पता चल चुका है, उनको बहुत ज्यादा ही सीवियरली पनिश किया जाता था, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लो, इसको आप बाद में आंसर करोगे। आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, आखिर इतनी बड़ी चीज फैलाया कैसे? नाजिज्म जैसी चीज जहां इतने लोगों को मार दे रहे हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, तुम किसी की जान लिए जा रहे हो, और ऐसे नहीं, 1000 नहीं, मतलब कुछ 10-20 नहीं, कुछ 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लाख लोग, जिस दिन उनकी डेड बॉडी जलाई गई, पूरे देश में जो है एशेस गिर रहे थे, इतना पोल्यूशन हो रहा था। मतलब इतना ज्यादा आप समझो स्मोक, पोल्यूशन नहीं, स्मोक जा रहा था, मतलब दैट वाज द कंडीशन। एंड इट इज सो सैड, इट इज सो ओवरवेलमिंग, मतलब दिल दहला देने वाली बात है। तो इस आर्ट को फैलाया कैसे गया? कैसे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया इस बात को? ये बहुत बड़ी बात है सोचने की। तो मास किलिंग को इन्होंने क्या किया? सो बेसिकली जो पूरा आर्ट था प्रोपेगेंडा का, वो बहुत अच्छे से प्लान किया गया था। कभी भी आप किसी को इसके बारे में बात करते सुनोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि अरे कुछ बुरा कर रहे हैं। जैसे कि मास किलिंग को ये स्पेशल ट्रीटमेंट कह रहे हैं, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन कह रहे हैं, यूथनेशिया कह रहे हैं, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन कह रहे हैं। यानी कि जब लोगों को मार रहे हैं तो कह रहे हैं ये फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। अगर कहीं पे सफाई, मतलब लोगों को साफ कर रहे हैं तो अरे वी आर जस्ट डिसइंफेक्टिंग दिस एरिया, चुन चुन करके लोगों को, हम जो बीमारी है सोसाइटी में उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको कह रहे हैं कि इनका जीवन वैसे भी किसी काम का नहीं है, इनको तो खत्म कर दो मेंटली या फिजिकली, चाहे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके साथ क्यों ना हो, अगर वो डिसेबल्ड है तो। और कह रहे हो यूथनेशिया, यूथनेशिया क्या होता है कि किसी की मर्जी से उन्हें अगर जीने का मन नहीं है तो उनके पेन से उनको रिलीफ कर दो, वो होना ही नहीं चाहते रिलीफ, उनको कर दे रहे हैं रिलीफ, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। दूसरा, चलो बाहर का मीडिया वगैरह को इस वजह से समझ नहीं आया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है इस देश में वॉर के आड़ में। लेकिन जो देश के अंदर थे, तो देश के अंदर के लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा से कन्विंस कर लिया था। इस तरीके के विजुअल्स, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स ऐसे स्प्रेड करते थे कि लगता था कि जो ये कह रहे हैं वही सही है, वही होना चाहिए। पोस्टर्स में ज्यूज को हमेशा एनिमी की तरह दिखाया जाता, तो ज्यूज का ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि अगर उनकी जान जा भी रही है तो आपको लगेगा यार ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी नो दैट देयर लाइक अ लॉट ऑफ टेररिस्ट्स, ठीक है, या माओवादी हैं।
हमें पता है कि वो वायलेंस करते हैं, वो लोगों की जान लेते हैं। तो जब आप ऐसा न्यूज़ पढ़ते हो कि पुलिस ने एनकाउंटर किया, पुलिस ने ऐसे किसी इंसान को मारा, आपको अंदर से खुशी होती है ना, आपको लगता है अच्छा एक बुरा बुरा एलिमेंट जो है, खुशी नहीं होती, एक तरीके की पीस मिलती है कि चलो ठीक है, बुरा नहीं लगता, दुख नहीं लगता, या ये नहीं लगता ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड। हमें लगता है कि शायद एक बुरा एलिमेंट था वो क्लीन हो गया, शायद बेहतर है। तो ज्यूज को वो बुरा एलिमेंट की तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था सोसाइटी में, और इस बात से कई सारे लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे। वो नाजीज के आइज से ही इस चीज को देखने लग गए थे, उसी भाषा को बोलने लग गए थे और मानने लग गए थे स्टीरियोटाइपिंग को जो नाजीज क्रिएट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में आ गए थे और इसीलिए आवाज ज्यादा उठ नहीं रही थी। हालांकि कुछ लोग थे जो सपोर्ट में नहीं थे, पर उनका क्या हुआ, उनके साथ बेसिकली ये होता है कि वो डर जाते हैं कि कहीं नाजी उनको दबा ना दे, उनके साथ सेम ट्रीटमेंट ना करे, तो वो भी ज्यादा आवाज नहीं उठाते। तो जो होलोकास्ट की जो नॉलेज है, इट ओनली हैपेंस टू रीच टू द पीपल आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड्स। इनफैक्ट जब इन्हें लगने लगा कि ये वॉर हार रहे हैं, तो कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वगैरह के ये सब जो थे उन्होंने जला दिए। एक ऐसा कैन मिलता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स भर के बरीड था, जो वो नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए होंगे, उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हासिल हो जाती है और वहाँ से हमें पता चलता है। और फिर धीरे धीरे कुछ लोग जो बचे होते हैं, कुछ सर्वाइवर्स होते हैं, उनके थ्रू हमें वी गेट टू लर्न दैट व्हाट हैड हैपेंड. So the question is, the whole world became fully aware of the atrocities that were happening in Germany only by the end of the war. Is this true or is this false? एंड बच्चों, द स्टेटमेंट एक्चुअली इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। वॉर खत्म होने के बाद ही हमें हॉलोकास्ट के बारे में, ऐसे हॉरेंडस चीज़ों के बारे में पता चलता है. सो दैट वाज इट. अ क्विक रिमाइंडर to check out the virtual lab experience. Definitely make sure to be registered for upcoming sessions on Imbibe Live and Imbibe Lens की का यूज़ तो करते ही रहो. समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा. हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इफेक्ट होते हैं आपके जर्मनी पे, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का इफेक्ट, वाइमार रिपब्लिक का इफेक्ट, हाउ पीपल डिड नॉट बिलीव इन टू वाइमार रिपब्लिक, वाई इट डिड नॉट रिसीव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड हाउ इट पेव्स द वे फॉर हिटलर. हिटलर आने के बाद कैसे वॉर वाले तरीके को डेवलपमेंट के लिए चुनता है, और ऑफ कोर्स रिकंस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर सिटीजन्स. ठीक है. And he was himself actually an Austrian, but fought for Germany, and that's how he goes ahead and becomes the chancellor actually in 1933, which gives him a lot of power. And then he starts going attacking offensive. ठीक है. नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई इक्वालिटी नहीं थी लोगों के बीच में, रेशियल हायरार्की थी. वो चाहते थे एक सोसाइटी बनाए प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस का, जहाँ पे ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियंस, पोल्स, इन सबको अनडिजायरेबल माना था. ये नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. यूथ ऑफ नाजी के लिए एक डिफरेंट एजेंडा बनाया फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. फीमेल को बोला कि आपको बच्चे पैदा करने हैं ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ सके नॉर्डिक आर्यंस की, डिजायरेबल चिल्ड्रन की, और जो नहीं करते थे उनको पनिश करते थे. और जो आपके व्हाट डू यू से, the people who the male the boys, they were taught to be aggressive, war ready, submissive for the government and be iron hearted. ठीक है. और नाजी वर्ल्ड व्यू तो सिंपल ही था, हमने समझ ही लिया है. ऑर्डिनरी पीपल और क्राइम्स के बारे में हमें यही समझ आया कि इतने अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रखा था कि लोगों को वॉर खत्म होने तक पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा है. सो विद दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, अभी पूरा चैप्टर किया है. कल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू गो ऑन द इम्बाइब ऐप एंड स्टार्ट टेकिंग ईदर अ टेस्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. छोटा 5 मिनट का टेस्ट ले लो, 15 मिनट का ले लो, फुल चैप्टर टेस्ट ले लो, वुड बी इवन बेटर. बट डेफिनेटली प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस. अगर आपको लगता है कि आपके डिजायर्ड मार्क्स नहीं आए, तो एक छोटा सा टारगेट 4-5 दिन के लिए सेट करके रीवर्क करके इसको इम्प्रूव कर लो अपनी अचीव जर्नी की मदद से. इम्बाइब लेंस आपके लिए कॉन्स्टेंटली है ही. अगर आपको लगता है आप अपने पेरेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो उनको भी कुछ टास्क असाइन करने का काम दे दो इम्बाइब के ऐप पे आकर. बाकी हम आपके लिए लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आपकी डाउट रेजोल्यूशन होती रहेगी. इसके अलावा बच्चों आपके लिए बहुत सारे वीडियोस और बुक्स, आपको और ज़्यादा डेप्थ में इसके बारे में पढ़ना है तो अवेलेबल है. You just have to ensure that you are logged into the app and you're registered for the sessions. And at the same time, आपको डाउट रेजोल्यूशन की यही करना है कि देखो ये जो हमारा है यहाँ पे राइट में आस्क अ डाउट है, उस पर क्लिक करोगे तो इट विल पॉप अप दिस चैट. यहाँ से आप अपने डाउट रेजोल्यूशन कर सकते हो. And do not forget to join the Telegram channel. Very, very important.
दिस इज द QR कोड एंड दिस इज द लिंक, बिकॉज यहीं से हम आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी अपडेट देते हैं, तो जस्ट इंश्योर दैट यूर अ पार्ट ऑफ दिस. ओके, सो ग्रेट. विद दिस वी हैव फिनिश्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. हमारे 3 चैप्टर अब 1 शॉट में हो चुके हैं. फ्रेंच रिवोल्यूशन, सोशलिज्म एंड रशियन रिवोल्यूशन, एंड हमारा नाजिज्म भी हो चुका है. इसी के साथ हम कुछ और चैप्टर्स भी अगले कुछ दिनों में फिनिश कर लेंगे, ताकि आप अपने फाइनल्स के लिए फुल प्रेप्ड रहो. आपको अगर किसी भी और स्पेसिफिक वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप. And do not forget to hit the like button if you enjoyed this session. Do share the video with your friends if you liked it, and make sure that you're subscribed to the channel so that you miss on nothing. और Imbibe पे आने वाले लाइव क्लासेस के लिए ज़रूर रजिस्टर कर लो. हम मिलते हैं बहुत जल्द. टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. हस्ता लविस्ता, बाय बाय, चाओ, टेक केयर, स्टे ट्यून एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.